कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो टुडे वी स्टार्ट। हमारा जो मैटर है वो है फ्रॉम द बुक हाउ टू लिव विद गॉड इन कंपनी ऑफ श्री राम कृष्ण बाय स्वामी चेतनानंद। और उसका फर्स्ट चैप्टर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ श्री राम कृष्ण। और इसके अंदर हमने 22 तारीख से कितने से 32 पेज से 42 पेज तक भेजे थे, 52 पेज तक भेजे थे, 20 पेजेस। एंड वी एक्सेप्टेड दम क्वेश्चन। तो केवल 6 लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे बस, और नहीं भेजे। एनीवे पहले तो इसकी समरी कौन करेगा? भुवन, यू आर कर रहे हो? जी महाराज। अच्छा करो। हाँ जी। Pranam to Thakur Ma and Swamiji. Starting the Ramakrishna as Jagannath. Sri Ramakrishna mentions his spiritual revelation that we should establish a relationship of friend, father, mother, and son with God. Sri M visited Jagannath's temple in Puri and embraced Bhagwan Jagannath there. Manomohan Mitra visited Puri one day after his wife and daughter's passing. At the altar of Jagannath, he had a vision of Sri Ramakrishna. Also, Swami Turyananji had a vision of Sri Ramakrishna coming down the steps of Lord Jagannath's temple. One day, Balram brought Bhagwan Jagannath's prasad for the master. Touching the prasad with his head, the master went into ecstasy and mentioned about Puri's vast ocean, wide roads, and infinite Lord Jagannath. He said if he went to Puri, his body would merge into Jagannath. In 1925, long after the end of Master's earthly life, Lakshmi saw the Master seated to the right of Lord Jagannath's shrine. Another time, Lakshmi longed to see the Master in the temple, and he manifested before her as Lord Jagannath. Ramakrishna as Krishna. The Master mercifully showed his divine luminous form to Navgopal Ghosh. Navgopal had invited the Master and his devotees for a Kirtan festival at his home. Suddenly, the Master stood in the pose of Krishna with a flute in his hand. Navgopal garlanded the Master, and all devotees sang Kirtans surrounding the Master. Further, Navgopal was blessed that evening when he saw Master's face beaming with a divine luminous glow. Earlier that day, the Master had first conversed with Nistarini, who expressed her wish to be blessed with Lord Krishna's vision. And thus the Master had entered into Samadhi in the posture of Krishna with a flute in his hand. Later, Nistarini requested the Master for Radha and Krishna's divine vision. The Master asked her to wait patiently for that. Swami Vijnanand heard in disbelief that the Master had played with the cowherd boys and girls in Vrindavan in his Krishna incarnation. Then the Master explained to Swami Vijnanand the divine, selfless, mad love. Hearing Krishna's flute, the gopis would leave their husbands and rush to Krishna. They offered their everything, mind and body to Krishna. At the time of Ras Leela, divine prey, Krishna was immersed in samadhi and the gopis were in ecstasy. Thinking of Krishna's divine play with the gopis, the Master became absorbed in that divine mood. And Swami Vijnanand understood and experienced the divine mood of the Ras Leela. Such was the Master's divine grace, as Ras Leela cannot be spoken about in words, it can only be experienced. The Master adorned Krishna's yellow cloth and wild flower garland and experienced ecstasy and samadhi. Ramakrishna as Radha. When the Master practiced Madhur Bhav Sadhana, as per his wish, Madhur Babu provided him with women's sari, accessories, and jewelry. His mood, behavior, and personality too became completely feminine. He would make garlands for Radha and Krishna and adorn their images. Similar to the gopis, he would sometimes pray to the Divine Mother to bless him with Krishna as his spiritual husband.
The master knew he had to win Radha's grace to get Krishna's vision, and so he worshipped Radha one pointedly, meditated, and prayed. Thus he got Radha's vision. He said of his vision, Radha's heavenly beauty and purity was indescribable, and she renounced everything out of her passionate love for Krishna. Radha merged into Sri Ramakrishna, and he felt complete identity with Radha. Ganga Mata, an ascetic saint of Vrindavan who had deep love for Radha and Krishna, understood Sri Ramakrishna to be a reincarnation of Radha and addressed Sri Ramakrishna as Dulari. She realized that her lifelong service and love for the Lord had been fulfilled by her meeting Sri Ramakrishna. Naren dreamed that Sri Ramakrishna asked him to come and see Gopi Radha. After going some distance, the master transformed himself into the blissful divine form of Radha. Naren was deeply influenced and from then onwards started singing bhajans of Radha's divine spiritual love. The master had thus blessed Narendra with this blissful aspect of God so that he could guide the Ramakrishna order with love. Thus, Narendra performed sadhana in the divine mood of Radha for 3 days and by Master's grace experienced divine love and became soft hearted. The Master, when he was in Radha's mood on Holi, also played Holi with Krishna's idol, and it was an overwhelming sight. Ramakrishna as the united form of Radha Krishna. To Girish's question, the master replied that he did not know whether he was a man or a woman. Even Hriday, who served the master constantly, could not recognize the master among a group of women at Mathur's Jan Bazar house. Surprisingly, Mathur also did not recognize the master when he was fanning the Divine Mother. The master so perfectly mimicked the women's gestures and enacted as a woman kirtan singer in front of some women visitors. The master explained of his experience of harmonization of the two ideals of Purush and Prakriti and was absorbed in the ideal and meditation of Radha and Krishna. As Radha, he would cry for Krishna. Once Atul Ghosh visited the master at Kaushipur. Atul had a vision of Krishna on the right half of master's body and Radha on the left half. Ramakrishna as Gopal. When spiritual progress, the visions one has uh, successively have lesser glory and grandeur. The aspirant first sees a powerful goddess with 10 arms, and then one sees the deity with 2 arms, and finally one sees Gopal, the tiny, powerless, pure, and tender child. Thereafter, Jyoti Darshan follows. Bhairavi Brahmani, when absorbed in Vatsalya mood, shed tears for the master and would hold butter in her hand and call him loudly, Gopal, Gopal. Meanwhile, the master, as a little boy, pining for his mother, would run a mile to see her and sitting near her would happily eat the butter. At other times, the Brahmani would adorn a red sari and singing Gopal bhajans visit the master to feed him delicacies. The master likened her mood to that of Yashoda grieving because of her separation from Gopal. One day, Aghoramani Devi performed her spiritual practice at 3 a.m. and then saw Sri Ramakrishna seated to her left and smiling sweetly. When she gathered her courage and grasped his hand, Sri Ramakrishna's form disappeared and baby Gopal appeared there. Gopal demanded butter, but poor Gopalma could offer him only coconut balls. Carrying baby Gopal in her arms, Gopalma rushed to Dakshineshwar at daybreak. In that exuberant spiritual mood, Gopalma shed tears. She was mesmerized by her naughty baby Gopal's pranks of merging into Thakur and then reappearing as a luminous boy. She couldn't control herself in that mighty spiritual tidal wave. Sri Ramakrishna finally stroked her chest and fed her delicacies, and only in the evening she went back to her home holding the baby Gopal of her vision. During Lord Jagannath's chariot festival, Gopalma visited the master at Balram's home. There, the master went into ecstasy and assumed Laddu Gopal's posture. The devotees understood that the master manifested Gopal because of Gopal Ma's devotion. Gopal Ma said that instead she loved to see the Gopal which plays, walks, and runs about. Sri Ramakrishna as Ramchandra. Once Kshudiram had a divine vision of Ramchandra asking that Kshudiram should take him home as he was starving there. So Kshudiram brought the Shaligram of Lord Vishnu to his home and installed it in his shrine. One day, the young child Gadadhar put on Raghuvir's garland and said playfully that he was himself Raghuvir.
Bhairavi Brahmani always carried a stone image of Raghuveer, which she hung around her neck. Once after the food offering, she deeply meditated and merged into samadhi, losing outer consciousness. The master came there and then, as if possessed by a divine power, and started to eat Raghuveer's offering. Bhairavi regained consciousness and was delighted to see the scene similar to her vision. When the master apologized, she explained that she realized that Raghuveer lived inside the master and thus gave up formal worship by consigning Raghuveer's image into the Ganges. The sage Jatadhari initiated Sri Ramakrishna into the Ram mantra. Jatadhari's Ram Lala, child Ram's stone image, joyfully played and lived like a living baby under the master's loving care. Jatadhari realized Ram Lala's wish to stay with the master. Jatadhari received realization and fulfillment from his chosen ideal and was content knowing that Ram Lala was happy. Nistarini Devi gladly agreed to serve and care for the kittens of a cat which had taken shelter in Ramakrishna's room. Thus the master blessed her and that she will have a vision of her chosen ideal, and when sh and then when she and then she had the vision of Ram, and then when she bowed down to Ram, she saw the form of the master. A Ramayit monk was depressed to know of the master's passing when he arrived at Dakshineshwar. He had walked barefoot from Ayodhya. In remorse, he couldn't eat for 3 days, and finally Thakur graciously appeared before him with a bowl of kheer for him. Ramakrishna as Sita. Ramakrishna saw with open eyes a luminous female figure with sublime qualities of love, sorrow, compassion, and fortitude. Finally, when a monkey fell at her feet, he knew her to be Sita. Sita merged into Sri Ramakrishna and he fell down unconscious. Sri Ramakrishna prayed to the Divine Mother, Mother, make me forgetful of everything, body and mind, with the single thought of, where is Ram? Even the Holy Mother had recalled that the Master presented her with bangles which resembled the ones Sita of Master's vision wore. One, Once, when Mathur was returning with Sri Ramakrishna in a horse carriage, the Master experienced samadhi, where he ex- where he saw Ravan's chariot being attacked by Jatayu to rescue Sita. That day, even the horses from the master's carriage broke loose and fell. Ramakrishna in the mood of Mahavir Hanuman. Desirous of Lord Ram's vision, the master practiced Hanuman's one pointed devotion. Absorbed in Hanuman, the master lost his separate identity and individuality. He behaved exactly like Hanuman, lived in trees, chanted Ram's name, and even developed a tailbone. Ramakrishna in the mood of Durga. The divine Mother Durga appeared from the Ganges, merged into the master's body. The master also had a vision of Mother Durga seated on a large blue lotus with Ganesh seated in her lap. Once, when the master ate Durga's offering, Mathur felt blessed that Mother Durga had accepted the offering and the Durga Puja was successful. When Mathur was desperate to worship Mother Durga daily and not perform the Visarjan, then the master reassured Mathur, saying that Mother Durga would reside in Mathur's heart and accept his worship constantly. The master even blessed Hriday and Surendra's Durga Puja. Ramakrishna as the Kundalini power. The master explained how he transcended the 6 centers of the Kundalini along the spinal column, starting from the base to the head. One should pray to God. Feeling restless for God awakens the Kundalini. The Kundalini power was always active in the master and he could arouse it by singing bhajans. Once he could arouse it in others. Once at midnight, the master felt extremely hungry. Gulab Ma brought him farina pudding, which the master consumed entirely. At that time, the master appeared as a heavenly god who transcended to transform the death-stricken world into an abode of gods. At other times, Gulab Ma and Nistarini Ghosh witnessed a serpent-like being gulping the food they placed in the master's mouth. Swami Vijnanand recalls seeing the master in samadhi with his lustrous face beaming with boundless joy, and his spinal column was inflated like a thick rope. Ramakrishna in the ocean of Sachidanand. Sat, existence, Chit, consciousness, and Anand, bliss, are the essence of Brahman. Sri Ramakrishna witnessed Sachidanand emerge from his body. Sachidanand itself spoke
that he incarnated in every age and that Shakti is the fullest manifestation of Satchidanand. The master had a vision that inside Satchidanand there were two groups. One group had worshippers of personal God, and the other side was a luminous space of red dust with Narendra in Samadhi. Ramakrishna instructed M that meditation on the formless God is like fish swimming in an ocean of bliss and consciousness. Hari Om Tat Sat. Yeah. Good, good. Well done, very good. Very good. I was checking the book also. You have done a very good job. Congratulations, thank you. So we start now questions. जी महाराज जी। क्या बात है दिलीप भाई, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ महाराज जी, मेरे को जाना था। आइए आइए, पहले आपको ही ले लेते हैं। जी महाराज। चलिए क्वेश्चन कीजिए। जी महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 32। हाँ। ठाकुर said, I am Lord Jagannath of Puri. Then Maharaj ji, Thakur is Lord Krishna, and if so, then Thakur is of Vaishnava Sampradaya, can we say? Because he declared himself at a number of places that I am Lord Krishna. यशोदा माँ का भी बात करते, बंसरी की भी बात करते हैं। तो ठाकुर शिव जी की तो बात करते हैं। हाँ। काली के साथ तो बराबर काली के साथ भी रहते थे, तो बराबर काली के साथ रहते थे, जी है ना? बिल्कुल। जीसस क्राइस्ट का भी दर्शन हुआ था। तब बोलिए जीसस क्राइस्ट को, ठाकुर को क्रिश्चियन बनाएंगे या शाक्त बनाएंगे, शैव बनाएंगे, वैष्णव बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए? तो आप ही बताइए। तो महाराज जी, ये क्या यूनिवर्सल गॉड? अरे श्री राम कृष्ण को बोलते हैं सर्वदेव देवी स्वरूप जी, बोलते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हम बोलते हैं जी। तो फिर नहीं तो वैष्णव भी है, शाक्त भी है, शैव भी है। तो जो भी लेना चाहता है वो रामकृष्ण को उसके धर्म में ले सकता है। वो अपने ले लेगा। आपको जो ठीक लगेगा, आप वैष्णव है तो रामकृष्ण को वैष्णव लेके रहो। हाँ वो ओके राइट। तो आपके श्रेष्ठ वैष्णव है वो। हाँ, हमारा ये पूछना था कि हम उनको वैष्णव समझ के भी उनकी पूजा कर सकते हैं। राइट महाराज जी। हाँ, ऐसे गुजरात में तो हमारे रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे वैष्णव डिवोटीज भी हैं। हाँ बहुत ज्यादा है, बहुत है। ठीक है। ओके महाराज जी, सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 33। इफ आई गो टू पुरी माय बॉडी विल नॉट लास्ट। महाराज जी व्हाई सो? ये क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या है कि वहां जाकर वो अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे, वो कि मैं तो जगन्नाथ ही हूँ, और उसके साथ में वो उसके साथ में एक हो जाएंगे। वो अपने स्वरूप को जान जाएंगे कि मैं जगन्नाथ हूँ जी, और उसके साथ एक हो जाएंगे। एक यही महाराज जी जो मेरा पहला क्वेश्चन था उससे ये सेकंड लागू होता है कि ये इन्होंने अपने आप को ये समझ लिया है कि मैं जगन्नाथ। उन्होंने नहीं, वो तो जैसा है ना, वो जगन्नाथ जी का, उनका ये कहना है कि जगन्नाथ जी ही एक बार एक प्रकार से श्री रामकृष्ण के रूप में दर्शन हुए हैं और जन्म लिया है, और जब वो जगन्नाथ में जाएंगे तो अपने स्वरूप को जान जाएंगे और जगन्नाथ के साथ एक हो जाएंगे। ओके राइट महाराज जी। लेकिन महाराज जी वो तो अपना स्वरूप को वैसे भी जानते थे। अब पता नहीं भाई ये क्या स्वरूप को इन्हें कॉन्शियसली, एक मैं कॉन्शियस लेवल पे जानू एक बात है, लेकिन सुपर कॉन्शियस समाधि के लेवल में जानना तो उसके साथ एक होना होता है ना। हाँ सुपर कॉन्शियस लेवल की अवस्था है जी। ये महाराज थर्ड क्वेश्चन, विक्ट्री टू लॉर्ड जगन्नाथ इन द फॉर्म ऑफ रामकृष्ण। महाराज जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, विक्ट्री ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? विक्ट्री है ना जय। हाँ वो बराबर, तो इसका मीनिंग शब्द है जय। जी, जय श्री राम कृष्ण जी, जगन्नाथ के रूप में श्री रामकृष्ण की जय, ये मतलब है इसका सीधा बात। ओके जगन्नाथ के रूप में श्री रामकृष्ण की जय। राइट महाराज जी, पेज नंबर 33, 34, 33 के आखिरी दो लाइन है। महाराज जी जगन्नाथ also gave darshan to devotees. Here महाराज जी, how Jagannath can give darshan to devotee? क्यों नहीं दे सकते? महाराज जी devotees are of Ram Krishna, not Jagannath.
पर यहाँ ये ये है, लिखा यहाँ पे तुम्हारे तो I am महाराज जी happy that the master was able to see Jagannath. Master said to Lakshmi, I am close हाँ to Jagannath. Why are you so anxious? You are thinking of me, so here I am. कहाँ पे है ये, कौन सा पेज पे है? 33 में तो महाराज जी लास्ट में मिलता नहीं है। पेज नंबर 33 की आखिरी 2 लाइन है, मैं पढ़ता हूँ. On another हाँ। occasion, Lakshmi was a little sad because she could not see the master in the temple. Then appeared before her and said, "Don't be sad. I and your Ramakrishna are the same." तो यहाँ पे जगन्नाथ तो भगवान ने प्रश्न क्या है? वो लक्ष्मी दीदी गई हाँ वहां पे, तो पहले उनको श्री राम कृष्ण नहीं दिखे, लक्ष्मण सिर्फ हाँ जगन्नाथ बराबर. दिखे, फिर श्री राम कृष्ण भी दिखे और उन्होंने कहा कि मैं और जगन्नाथ एक हैं। ये दर्शन हुआ ना। नहीं महाराज जी, एक मिनट, ये यहाँ पे लिखा है on another occasion Lakshmi was a little sad because she could not see the master in the temple. Perfectly right. Then जगन्नाथ appeared, यानी जगन्नाथ जी appear हुए और उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण हूँ, जबकि रामकृष्ण इसको जगन्नाथ कहते हैं. जगन्नाथ और रामकृष्ण एक ही है बाबा। हाँ हाँ, पर यानी जगन्नाथ भगवान तो ने वो जगन्नाथ, वो लक्ष्मी को तो जगन्नाथ ही दिखे, हाँ और तो उसने कहा रामकृष्ण तो है नहीं। जी तब वो जगन्नाथ तो बोला, अरे मैं ही रामकृष्ण हूँ। जी. रामकृष्ण अपने आप को जगन्नाथ कहते थे, ये अभी तक यहाँ आया, पर आपके जगन्नाथ ने कह दिया कि मैं रामकृष्ण. नहीं, ये तो लक्ष्मी की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी के लिए कहा ना. और लक्ष्मी ने जगन्नाथ के मंदिर में गए जी और वहां पे उनको रामकृष्ण नहीं दिखे तो बड़ी उदास हो गई। जी बराबर. हाँ तब जगन्नाथ ने जगन खुद कहा कि अरे मैं ही तो रामकृष्ण हूँ। जी. चलो सर. ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 35. Although Krishna was not wealthy. महाराज जी, what is the meaning of this? Krishna was not wealthy. क्या इसका मीनिंग अरे ये है? कृष्ण तो, अरे ग्वाले, हे भगवान, हाँ बोलो. कृष्ण तो ग्वाले थे ना। जी कृष्ण तो ग्वाले थे भाई, धनवान थोड़ी थे। कृष्ण सेठ थोड़ी थे। कृष्ण तो ग्वाले थे ना, ग्वाले थे कि नहीं? हाँ हाँ, ग्वाले ग्वाले थे. तो यहाँ हाँ, तो पे वो कृष्ण. सेठ थोड़ी थे, पैसे वाले थोड़ी थे, ओहो, वेल्दी नहीं थे, धनी नहीं थे। अच्छा, ये कर. Same page number 35, Swami Vidyanand said, I had a wonderful experience about the Ras Leela. What an experience he had. We don't know, we don't know, Okay. कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा दर्शन हुआ, खत्म हुई बात। अगर मैं कहूँ, यानी मैंने कह दिया कि अरे मुझे बड़ा अच्छा दर्शन हुआ है, तो मैंने तो वर्णन नहीं किया ना मेरे दर्शन का। नहीं नहीं नहीं. तो कैसे पता चलेगा? महाराज जी, जहाँ पर जो रिचनेस की बात कही है, कृष्णा वाज नॉट रिच, उसका मतलब ये कि उसमें ऐश्वर्य उनको नहीं नजर आता था, फिर भी वो उनसे प्यार करते थे, क्या इसका ये भाव है? हाँ, वो तो धनी थोड़ी थे, बच्चे थे, खेलते धनी कूदते थे, इतने धनी मीन्स प्रेमी थे, ऐश्वर्य, इतने ऐश्वर्य. सुनो, हाँ ऐश्वर्य जी, नहीं था लेकिन आकर्षण था, यही कहना चाहते हो ना? हाँ जी जी महाराज. तो खत्म हुई बात। द जी क्वेश्चन इज आंसर्ड ना। तो व्हाई आर यू ब्रिंगिंग आउट? यहाँ जो वेल्थी की बात है उसके ऊपर प्रश्न हो रहा जी 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 है, इसको एनालिसिस नहीं करना है, यहाँ तो वेल्थी शब्द के ऊपर हो रहा है। हाँ, यस, ओके महाराज जी, ये है आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ रासलीला, आपने जवाब दे दिया. अनदर क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 35, स्वामी जी, व्हाट इज मधुर भाव देन? मधुर भाव यानी भगवान को जी पति समझ के उसको प्रेम करना। भगवान श्री कृष्ण को बाल कृष्ण के बाद समझते हो तो? हाँ श्री कृष्ण को बाल कृष्ण के रूप में तो तुम लोग करते हो ना, जी जी जी, उसमें है ना? जी हाँ अब श्री कृष्ण को पति समझ के उनका सेवा, उनकी पूजा करना, उनको साथ मेल मिलाप करना, इसको कहते हैं मधुर भाव। राइट. अच्छा अच्छा जी महाराज. पेज नंबर 36,
महाराज एक एक्सपीरियंस में बताओ, हम लोग जब बद्रीनाथ गए थे तो एक जी। रामकृष्ण मिशन के एक डिवोटी थे, वो बद्रीनाथ का दर्शन करके बोले कि वो उनको ठाकुर ही दिख रहे हैं। हो गया, ये तो पहले हो गया, यहाँ तो मधुभाव हाँ की बात चल रही है। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो बोल रही पहले हूँ, बोलना चाहिए ना। मेरे साथी थे वो। हाँ अरे तो जब बात हो रही थी तब बोली क्यों नहीं? हाँ। ठीक महाराज जी, नेक्स्ट अब बोल रहे हैं क्वेश्चन। जब ये दूसरा मधुभाव की बात आ रही है। हम्म। महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why woman stepped out with her left foot first? ये क्या है ना? Is there any meaning behind पता it? पता नहीं नहीं। बाबा क्यों वीमेन। हम्म। अरे यहाँ तो ये मिलिट्री मिलिट्री जो परेड करते हैं ना, हाँ, लेफ्ट एनसीसी राइट। परेड करते हैं, पुलिस करते हैं, तो भी तो लेफ्ट साइड को तो लेफ्ट, फुट बाहर लेकर निकालते हैं। नहीं पर इन्होंने स्पेशल लिखा था, इसलिए मैंने कहा तब कि ये मैं नहीं समझता, मैं खुद ही नहीं ओके, समझ रहा हूँ। वीमेन का आदत है। अरे सभी आदमी तो बायां फुट बाहर निकालते हैं, क्यों है निवेदिता? हाँ जी महाराज, ये कस्टम होता है मैरिज में भी, वो जब यस। एंटर करती तो बाएं पैर पहले करते हैं। तो मतलब नहीं, ये लेकिन हम लोग तो मिलिट्री में भी, एनसीसी में भी जब परेड स्टार्ट करते हैं तो बाएं पैर से ही तो करते हैं। हम्म। और पुरुष लोग भी दायां पैर बाहर निकालते हैं कि बायां पैर था, ये तो नहीं जानते। हम लोग भी शायद बाएं पैर से ही तो पहले चलते हैं। जी। केवल स्त्रियां चलती हैं ये तो सब मालूम नहीं बाबा। अच्छा महाराज जी, next question on page number 36. Why gopis pray goddess Katyayani, being her to give him Krishna as her spiritual husband? And ये कात्यायनी, गोपियों ने हाँ देवी जी, कात्यायनी से प्रार्थना की कि हमको श्री राम कृष्ण जो है पति मिल जावे, है ना? जी जी जी। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यही है कि कात्यायनी देवी जी क्या है और उसमें क्या उनका। क्या जो उनसे क्या नुकसान है? और गोपियां यदि भगवान को पति नहीं चाहती नहीं, हैं हमें तो उसका देवी कात्यायनी से प्रार्थना की, खत्म हुई बात। अच्छा है, नहीं उसमें तो नहीं, क्या नुकसान है? मेरा नुकसान से बात नहीं है। कात्यायनी देवी किसको दुर्गा रिप्रेजेंट करती है। रिजेंबल कर रही है, ये मैं जानना चाहता था। उससे ये नहीं कि जैसे अरे कहते काली। कोई भी अपने, तुम जिसको अपना मानते हो, तुम जो है ना, तुम कृष्ण गोपाल के पास प्रार्थना हाँ करोगे कि प्रभु मेरे को ये दे दो, हाँ है ना? हाँ हाँ जी महाराज हेलो। जी जी। और ये तुम है वो भगवान से प्रार्थना करोगे। महाराज जी, सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल सिर्फ छोटा ये था कि कात्यायनी दुर्गा देवी, माँ दुर्गा की ये है। हाँ जैसे हम दुर्गा माँ को जानते हैं वैसे महाराज ही। जी, जैसे हम दुर्गा माँ को जानते हैं, ये सरस्वती को कात्यायनी माँ जानते के हैं। पास हाँ, इसके बारे में क्योंकि ये साउथ इंडियन होंगे तो हम जानते नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि आप कुछ बता पाए। अरे जिस प्रकार तुम गोपाल हाँ। के पास जाओगे, वो कात्यायनी के पास। तो कौन देवी हमें मालूम नहीं जी। चलो। क्या दिलीप भाई हुआ कि नवदुर्गा का नहीं? एक नवदुर्गा का एक पार्ट है। नवदुर्गा का एक रूप है एक कात्यायनी। रुपए, करेक्ट जी जी। ओके महाराज जी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभाव। महाराज जी, व्हाट इज महाभाव? ऊपर था मधुर भाव, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुलाली? दुलाली। दुलाली मीन्स बिलवेड, जी हाँ। और ये प्यारी महाभाव, प्यारी। दुलाली मीन्स प्यारी। प्यारे जी, महाभाव। राधा का एक नाम है, राधा का एक नाम है दुलाली। अच्छा, राधा का नाम है। हम्म। हाँ, और ये महाभाव। स्वामी जी आप म्यूट है। म्यूट हो गए आप। म्यूट है महाराज जी आप। संजय जी भी म्यूट है। महाराज को आपकी आवाज आ रही है इसलिए मैं म्यूट रखा हूँ। नहीं पर महाराज जी, महाराज जी महाराज नहीं जी बोल। वो स्क्रीन पे टच करके नीचे में माइक आएगा, उसको टच करना होगा। स्क्रीन पर एक बार टच करें कहीं भी, और
नीचे से उठ के आएगा एक माइक जैसा, लेफ्ट साइड में, सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में आएगा माइक जैसा, उसको टच कर देंगे माइक को तो चालू हो जाएगा। अभी तो लगता है हो गया, बोल के देखिए। हाँ, हो गए अनम्यूट। हाँ हो गया महाराज जी, हो गया जी। महाराज जी, व्हाट इज महाभाव? अच्छा, ये हुआ कि तुम्हारा गाता ही नहीं हो गया तो? जी नहीं, आवाज टूट रहा है महाराज। हाँ, अरे का- भाई, का- कात्यायनी हो गया महाराज। आता ही नहीं हो गया। नहीं हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कुछ महाभाव? गड़बड़ हुआ क्या? महाभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 36 पेज। देखो ऐसा है। हाँ हाँ ठीक है, महाभाव देखो, ये बताता हूँ, समझाता हूँ। जी देखो, जी। श्री कृष्ण को हम प्यार हाँ करेंगे तो बच्चे जैसा जी प्यार करेंगे ना, बच्चे के रूप में। हाँ ये हुआ जी वात्सल्य भाव। जी, अच्छा, बराबर। उसके बाद में जब श्री कृष्ण को वो अगर प्यारी प्रेम उनको स्वामी पति समझेंगे तो वो मधुर भाव हुआ। हाँ बराबर। और और ऐसा ये है कि एक उच्चतम स्थिति आती है जिसको महाभाव बोलते हैं। ये अच्छा। क्या है कि आध्यात्मिक अनुभूति का स्तर है। हाँ 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 इसको यानी एक्सपीरियंस करना बड़ा मुश्किल है, यानी वर्णन भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु को हुआ था, श्री हाँ रामकृष्ण को चेतन। हुआ था। हाँ वो कहना एक हृदय की एक स्थिति है, जी, उच्चतम स्थिति, अच्छा। जिसमें हाँ हाँ वात्सल्य भाव, मधुर भाव, दास्य भाव, ये सब भाव सब एक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं महाभाव। ठीक है दिलीप भाई? जी right। जी आगे समझ दिया गया जी महाराज। महाराज, महाराज ये आपका उच्चतम। आपका हाँ बोलो। फोन दूसरी दिशा में रखिए क्योंकि आपकी फोटो साइड में दिखाई दे रही है। अभी हुआ? नहीं नहीं, एक और टर्न। नहीं, एक टर्न और लगाना पड़ेगा। एक बार कैमरा मोबाइल को उल्टा थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए आप। जैसे अगर आपका फोन ऐसे रखा है ना, तो आप इसको ऐसे रख दो, फिर अभी ठीक हो हुआ? जाएगा। अरे भाई, मैं तो जैसा है वैसा के वैसा ही रखा है। नहीं, आपने पूरा उल्टा कर दिया महाराज, उसको थोड़ा सा एंगल करना है, 90 डिग्री से रोटेट करिए। एंटी अच्छा सुनो, क्लॉकवाइज। मैं एक काम करूं, मैं बंद करके फिर मैं करूं? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आप थोड़े से लेटरल दिख रहे हैं टॉप डाउन के बजाय, तो आप एक बार 90 डिग्री से कैमरा रोटेट करें तो समझ आएगा। एंटी क्लॉकवाइज। जी अभी आया? हाँ। ठीक है। नहीं 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 महाराज। नहीं, अभी तो वैसा ही है। और हाँ, ये एक आप बार पूरा कर दीजिए। रोटेट कर, हो गया। मतलब फोन को ऐसे रखने की जगह ऐसे रखिए, फिर ठीक होगा। यस। मेरे ख्याल में वो रोटेशन वर्क नहीं कर रहा प्रभा, है। मुझे फोन देना उधर से। हाँ, कौन रंजन? सा भी? जी महाराज, दिखाता हूँ अभी। महाराज, आपने फोन को अगर ऐसे रखा है ना, तो ऐसे कर दीजिए। फोन का पोजीशन बदलेंगे तो आपका इमेज, हाँ अब हाँ, सही हो हो गया, गया महाराज। हो गया महाराज। नहीं, ओके अभी फिर ओके। ज्यादा घुमा दिया आपने। उनका मेरे ऐसा था तो ऐसे करना है सिर्फ। हाँ हाँ, हो गया। नहीं, अभी नहीं। अब जी अभी फिर ज्यादा हो गया। हाँ, अब अभी हो ठीक है गया, अब हो महाराज। गया, ठीक है। नहीं, अरे फिर नहीं, ज्यादा घूम गया। मेरे ख्याल में हाफ एक घुमाइए, बार हाफ 90 घुमाइए। डिग्री घूमेगा बस। उनका रोटेशन काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल में, दैट इज व्हाई। नहीं, वो एक अब बार ये ऑलमोस्ट ऐसा है ना ठीक है, महाराज, इसको ऐसे कर देना ऑलमोस्ट। है साइड में 90 डिग्री से। अभी ऐसे ही रहने दो, नहीं तो फिर हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही ओ, रहने दीजिए। चलिए। हाँ महाराज जी। महाराज जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराज एक सवाल था, महाभाव से भी ऊपर कुछ है जो प्रेम, क्या महाभाव से भी ऊपर है? पता नहीं बाबा, ये ऐसा है। वहाँ मैं भाव, महाभाव जो है ना, जी। वो कि इमोशनल एक्सीलेंस का हाईएस्ट है, ऐसा समझ लो। अच्छा। तो ये वहां पर जो है उसका आप जैसे कह सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स काम नहीं करता है, उसके बाद नीचे जो है ना
इमोशंस का एस्पेक्ट जो है ना वो ज्यादा काम करता है। और यदि मेडिकली समझना चाहो तो अब वो कैसे होता है क्या होता है समझ में। इट इज द हाईएस्ट, एनीवे इट इज द हाईएस्ट। हाँ बस इतना ही काफी। Maharaj, my next question is, the life of sadhus and sannyasis is dry and dreary. As Swami Vivekananda said, what we see is something different. उन्होंने ये बताया कि राधा का यदि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो माय लाइफ वुड हैव बीन ड्राई एंड ड्रेरी। तो क्या साधु महात्माओं की लाइफ ड्राई और ड्रेरी नहीं रहती है तो क्या रहती है? कौन सा क्वेश्चन है ये तुम्हारा? मेरा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्या बोला? हाँ महाराज, माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखा है साधु एंड सन्यासीज आर ड्राई एंड ड्रेरी। I have seen a new light by the grace of the master. If I had not experienced this love, my life would have been dry and dreary. महाराज जी, ये मेरा सवाल ये है कि स्वामी विवेकानंद जी को तो मास्टर के दर्शन हुए थे, उनके आशीर्वाद थे, इसलिए उनकी लाइफ ड्राई एंड ड्रेरी नहीं हुई। तो क्या बाकी साधु सन्यासियों की लाइफ क्या ड्राई एंड ड्रेरी है क्या? अब भाई तुम जानो यार, तुमको लगता है क्या ऐसा? अब महाराज जी, ये तो आप एक्सपीरियंस करते होंगे, हमें क्या मालूम? नहीं, हम तो इतने लोगों से बातचीत करते हैं, तुमको लगता है क्या कि हम ड्राई एंड डेरी हैं? नहीं तो फिर ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है यहाँ पे। ये अपनी समझ में नहीं आया मेरे को बात। ओके महाराज, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। कोशिश यहाँ पे कर लिखा है, हम तो जैसे हैं वैसे हैं जी। अगर मोहब्बत, हम लोग तो मोहब्बत प्रेम भी करें तो ठाकुर से ही करेंगे या कृष्ण से करेंगे, बाहर के लोगों से तो करेंगे नहीं। नहीं, पर हमेशा और हमारे अब वो प्रेम जो क्या है, हम तो अपना जितना है डोनेशन कर देते हैं, हम सेवा करते रहते हैं, सेवा तो हमने सारा जीवन में किया है। अब उसमें कंपैशन तो है, कंपैशन को भी वहाँ ड्राई एंड ड्रेरी के अंदर ही आ जाता है। ये बात तो समझ में नहीं आया महाराज अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ लिखा है, देयर इज अ ग्रेट मिस्ट्री हिडन इन विवेकानंद विजन ऑफ राधा। दैट वाज अ मिस्ट्री। ये अब कौन बोल रहा है? निवेदिता बोल रही है कि कौन बोल रहा है? मैं बोल रही महाराज, जो वेदांत साधन करते थे मतलब स्वामी जी, तो उसमें ड्राई और हार्ड हो जाता मन, और उससे पूरी मतलब पूरी सेवा नहीं हो पाती किसी की। पूरे जगत के लिए जो काम कर रहे हैं उनको प्रेम भी चाहिए, प्रेम नहीं हो किसी को प्यार नहीं कर सकते वो। तो अगर प्यार नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसे, इसलिए उनको बोला राधा की कृपा हो, इसलिए बोला था। इसी में मेरा सवाल भी था। आपने देखा होगा महाराज जी कि उसको ड्राई एंड ड्रेरी क्यों बोल रहे, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि स्वामी जी कितने कंपैशनेट थे। वो जब बच्चे थे तो खिड़की से कपड़े लत्ते फेंक देते थे, गरीबों के लिए, भिक्षुओं के लिए खाना दे देते थे। कंपैशनेट और प्रेम अलग अलग चीज है। मतलब प्रेम होना, प्रेम आ जाएगा तो फिर सबकी पूरी जगत की सेवा हो सकती है। प्रेम बहुत हाईएस्ट है, इसलिए बोले। मतलब ड्राई भाई यहाँ ने कंपैशन और प्रेम को अलग किया है। यहाँ पे कंपैशन और प्रेम को अलग किया, ये मेरे को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, एक मिनट महाराज, अभी जैसे मोबाइल है ऐसे रखे, अभी आप सीधा दिख रहे हैं, बीच में आप इन्वर्टेड दिख रहे थे। अभी ठीक है। वो प्रॉब्लम हुई थी, सुनो वो प्रॉब्लम हुई थी, मैंने अभी क्लिक करके उसको कनेक्ट किया। ओके, बेसिक प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, हाँ महाराज जी, मैं तो this love is beyond above compassion also, जो यहाँ पे बताया। अब भाई ऐसा है ना कि ये then what is love? मतलब जैसे माँ का है ना, श्री माँ का सबके प्रति एक प्यार रहता है, वो हाईएस्ट थिंग। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी का था प्रेम, श्री माँ का तो नेचुरली। Swami ji, can I attempt something here? Yes. Swami ji, that Swami Vivekanand, he always kept there are different dimensions of love.
But that Radha Krishna prem he always kept in restraint. Now, in all his songs, there is only one song where he sings of of Radha Krishna, that kind of love. And that was only after Thakur exposed him to that. Otherwise, that dimension, he would keep it in restraint. So just No, to show. that is already, this is the Swamiji himself says. That is Yes. Swamiji himself says that after that I understand love. Now, my question is, and the difficulty which we are discussing is that when a person has compassion, he is serving people. Is there love? Love It's is only love. It's only love. But the thing is, there are different dimensions of love. And Okay. ठीक है. This is the highest manifestation of Radha Krishna. Okay. That's it. Right. Thank you. Yes, Maharaj, next question. Every one of the master's devotees has seen to a greater or lesser degree the existence of a masculine and feminine modes in it. Maharaj, this applies only to the 15 or 16 Thakur's devotees, or for everyone it is? No, not for everyone. क्या है बोलो तो? Yes. Page number बोलो. Page number 37, question number 10 or 12. आखिरी line है. Last paragraph of question, page number 37. Swami Sardananda wrote, every one of the master's devotees has seen to a greater or lesser degree the coexistence of masculine and feminine moods in him. वो श्री रामकृष्ण में. रामकृष्ण और उनके जो डिवोटीज 15-16 थे उन्हीं के लिए. नहीं. शारदानंद जी कह रहे थे कि every one of the master's devotees has seen to a greater or lesser degree the existence of in him, in Sri Ramakrishna. यानी श्री रामकृष्ण में उनके जो भक्त थे उन्होंने निश्चित रूप से देखा नारी भाव और पुरुष भाव दोनों थे. ये हो गया बस दूसरों में नहीं. जी समझ गया. महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैष्णव साधना? तो वैष्णव साधना इस भगवान को कृष्ण बना, अपना भगवान को अपना अपने भगवान को स्वामी बनाना, भगवान को बालक बनाना. ये वैष्णव का अर्थ है विष्णु. यस, विष्णु की साधना जी. तो ये शिव साधना हो जाए जब शिव जी की साधना करेंगे जी. और शाक्त साधना यानी माँ काली की साधना करेंगे तो शक्ति की साधना हो जाएगी. तो ये हुआ वैष्णव शब्द का. Okay, right, जी महाराज. Next, my question is, what sufferings Ramakrishna Dev had for which he was reminded of while seeing Sita? इन्होंने कहा सीता को देख के मैंने अपना सफरिंग याद आ गया. पेज नंबर 45. क्या बोला है? यस, मैं बता रहा हूं. This was the first vision I ever had with my eyes wide open, and when I wasn't meditating, I believe it is because of my first such vision was of Sita in her sorrowful aspect that, like her, I have had so much suffering in my life. Yes, 45 का प्रश्न क्या है आपका? हाँ, तो ये क्या है? तो महाराज जी, my question is, what is suffering he is reminded of? नहीं, वो सीता, उन्होंने पहला दर्शन सीता का हुआ जो सीता सारा जीवन कष्ट पाती रही ना. हाँ, पर उसने सारा जीवन तो वनवास में ही बीता ना. हाँ, पर इसके अंदर इन्हें सफरिंग, इनकी कौन सी सफरिंग इनको याद? गले में कैंसर हुआ ठाकुर को. नहीं, that is the last. But वो सारा जीवन क्या सुख में रहे क्या? वो थोड़ा सा कमरा जाके देखो ना, उनका कोई सुख का जीवन था क्या उनका? कठोर तपस्या थी. कठोर तपस्या भी तो सुख दुख, तो कठोर तपस्या जो है वो सफरिंग की तो होती है. श्री रामकृष्ण के जीवन में दर्शन, भगवान के दर्शन के अतिरिक्त तो और कोई सुख था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था. बस यही बात कर रहे हैं. अच्छा,
अच्छा, what type of feelings Ramakrishna had while presenting Bengal similar to Sita? ये महाराज जी ये नहीं क्या नहीं, वो उन्होंने माँ शारदा को उन्होंने हाँ। दर्शन किया था, सीता को दर्शन किया था, और सीता का जब दर्शन किया था तो उनको सीता के ने जो कंकन। उन्होंने सीता की चूड़ियों का दर्शन किया, जो तो माँ डिजाइन था वैसे शारदा को बना दिया। उन्होंने उसी तरह की चूड़ियां बना के प्रेजेंट की थी। माँ शारदा जी। बाला, इसलिए कि उन्होंने सीता माँ शारदा को हाँ। सीता ही माना। ओह अच्छा 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 ठीक है। हाँ हाँ हाँ, that's very nice. महाराज जी ये ओपन आई विजन क्या होता है? इसको सुन के तो अजीब रोमांच होता है, क्योंकि लोग समाधि में देखते अरे हैं। पहले तो अच्छा। सुनो, जरा पहले क्लोज आई विजन एक बार कर लो ना, तब आगे बात करेंगे ओपन आई विजन की बात। ये तो ऐसे भगवान, मतलब अद्भुत अवस्था है महाराज। चलो छोड़ो, ये डिस्कशन का टाइम है यहाँ पे। महाराज जी एक क्वेश्चन और है मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन है। स्वामी तुरानंद जी रिसीव्ड द एक्सपीरियंस ऑफ हॉर्सेस फेल्ट। महाराज जी व्हाट दिस इंसिडेंट शोज, ये पेज नंबर 45 पर है। द मास्टर क्या वो स्वामी क्या बोलते हैं, तुरानंद जी ने जी कहा जी शांतानंद जी को, उन्होंने कि एक बार ठाकुर, वो एक ठाकुर जो है वो घोड़े में बैठ, उसमें बग्गी में बैठ के जा रहे थे, हाँ, बगी में बैठ के जा और रहे थे। उनको ये दर्शन हुआ कि वो मानो सीता हो गए हैं, हाँ और वो सीता हो गए हैं, और रावण मुझे उनको उठा के ले जा रहा है। जी तब उसके बाद में क्या हुआ, उस समय घोड़े जो हैं वो उछल कूद करने लगे, भागने लगे। क्यों हुआ? क्योंकि उस दर्शन में उन्होंने ये भी देखा कि जटायु ने आके और उसके ऊपर आक्रमण किया है, उसके ऊपर, रथ के ऊपर। हाँ समझ गए ना? जी वो जटायु ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि वो सीता को ले जा रहा है। हाँ तो उसमें रावण का जो रथ है जो वो उधर टूट फूट गया। हाँ हाँ तो ये यहाँ पे हुआ। जी। और ये मथुरा बाबू ने बताया है कि हमारे रथ को भी यही हुआ। हाँ, हम जा रहे थे तो घोड़े उल्टे पुल्टे हो गए, ये हो गया, हमारा रथ गड़बड़ हो गया। एकात्म भाव हो गया। और तो क्या सो, तो समझ में नहीं आया। तब बाबू उसने पूछा, जब ठाकुर ने हाँ। उससे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा दर्शन हुआ कि मैं सीता हो गया हूँ और रावण ले जा रहा है, और जटायु घोड़े हाथ मार मुझको आक्रमण कर रहा है। तब मथुर बाबू ने कहा, बाबा तुम्हारे साथ में तो इधर उधर जाना भी कितना कठिन है, अगर तुम भाव में चले जाओगे तो क्या होगा। केवल तुम्हारा भाव जो है वो केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं रहेगा, तुम्हारे सारे तरफ सारे वातावरण में भी भाव प्रभाव पड़ जाए। जी 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 राइट। बस महाराज जी ये राम प्रसाद काली क्या है? व्हाट इज राम प्रसाद काली? अरे राम प्रसाद भक्त है, राम प्रसाद भक्त है। भक्त है उनके, वो भी है। वो कहेंगे, वो ये जो है ना, वो हमारे वो बनारस में, अपने इंदौर में जो आदमी कृष्ण भगवान कृष्ण का मंदिर है ना, वो जो है वो दिलीप भाई के कृष्ण है। क्यों? दिलीप भाई रोज जाते हैं वहां। ओके, नथिंग मोर। हाँ, जिस काली की पूजा राम प्रसाद करता था उसको राम प्रसाद की काली बोल दिया। बस राइट महाराज जी, प्रणाम, बहुत बहुत। चलो, हो गए तुम्हारे, पूरे हो गए? जी महाराज जी पूरे हो गए। एक्स्ट्रा जो 5 थे वो भी हो गए। चलो, ये तो घोष है कि नहीं? तो ये चली गई, आई नहीं है महाराज जी, शी इज हियर। तो महाराज जी मैं इजाजत लेता हूँ। अच्छा, मेरे को माफ करें। अच्छा अच्छा, ओके। ईतू घोष, ऐसा नहीं, सुनो दिलीप भाई। जी जी दिलीप भाई, जी आपको तो अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा रेगुलरली पूरे समय बैठते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगली बार से सभी लोग कहेंगे हमको जाना है, हमको जाना है, जल्दी से कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी मैंने पहली बार आपसे मांगी है। हाँ, वही बात है, आपको परमिशन, इसीलिए परमिशन कर रहा हूँ। जी प्रणाम महाराज जी। ईतू घोष, आप अनम्यूट कर लीजिए ईतू मैम। ओ प्रणाम महाराज। हाँ हम हाँ भाई, चलो। जी जी। मेरा पहला प्रश्न है,
from the text. Later, Golapma described her experience. Once I saw that when the master was eating, a serpent-like being was engulfing the food from his throat. I was amazed. The master asked me, "Can you tell me whether I am eating or someone else?" I told him, "It seems a snake is sitting in your throat and engulfing the food." So my question is, as we know that Kundalini remains as an imaginary serpent figure, is it this that Thakur is showing us everything as true, whatever he has spoken to us? अरे इनमें इमेजिनेशन नहीं, हम लोग मानते हैं कि वो सरपंच जो है इमेजिनरी है, लेकिन जी। इनके ठाकुर के दर्शन से ये हुआ कि he हाँ। has proved that the serpent is real. कुंडलिनी शक्ति सभी के अंदर रियल है, और जब हम खाना खाते हैं तो कुंडलिनी शक्ति खाती है. The physiological power which is in all of us. Okay. So it is true. जी. Okay. My second question, why Thakur revealed the same serpent like Kundalini even to Nistarini Devi? हाँ? निस्तारनी देवी ने भी यही देखा था, तो दर्शन हुआ था। हाँ, दर्शन हुआ था। What is your question? क्वेश्चन ये है कि ये तो गोलाप माँ ने देखा, फिर निस्तारिणी माँ में भी देखा, तो इसका मतलब सच ही है। इसका मतलब तो सच। निस्तारिणी ने भी देखा होगा. हाँ, He must have talked to Nisarani before and now. जी. ओके, मेरा थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द टेक्स्ट. Master, I have had many amazing visions. I had a vision of indivisible Satchidanand. Inside it, I saw two groups with a fence between personal God. Personal God on the other side was a luminous space like a heap of red brick dust. Inside it was seated Narendra, immersed in samadhi. So please explain this part. No importance. Brick red dust or white dust or तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई लेना देना नहीं है. There's nothing to do with spirituality. Oh, Unless don't give importance to that. Oh, okay. चलो सुबीर मजूमदार. Pranam Maharaj. Swamiji, can I ask one small thing? Is the dust pertaining to the particles that make up the idols? So it's a formless God, basically. It's dust, no form. No. Dust has nothing to do with what red, white dust. Dust is up to, don't give importance to that red, white dust. Okay. Yes. Subir Majumdar. Pranam Maharaj ji. I will ask you the first question, Maharaj. On page 35, Swami Vijnanananda recalls Thakur talking about Ras Leela. So my first question is, Maharaj ji, what is the significance of Ras Leela? You see, is that your question? Just a minute. ये फर्स्ट पेज है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है. हाँ महाराज जी. इसलिए उसमें स्वामी शारदानंद जी ने उसको क्या है कि डिस्कस. विज्ञानानंद जी ने रासलीला का डिस्क्रिप्शन दिया था जो हुआ था, तो मेरा सवाल था कि रासलीला का सिग्निफिकेंस क्या है. You see, इसको बोलो क्या है कि रासलीला में ये है कि वो सब लोगों का बॉडी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली चला जाता है. ओके. यानी वहां पे स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं रहते. पहली बात. राइट. दूसरा बात है इज एब्सोल्यूट मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लिस.
सच्चिदानंद का जो ब्लिस एस्पेक्ट है वो मैक्सिमम मैनिफेस्ट होता है, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन। तो ये दो सिग्निफिकेंस मुझे लगते हैं कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस से परे की अवस्था है, जहाँ पे देहात्म बोध नहीं है तो स्त्री पुरुष बोध नहीं है। लोग गलत समझते हैं, वो गलत समझते हैं। स्त्री पुरुष इत्यादि समझते हैं। जी, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे उच्चतम आनंद की अनुभूति अभिव्यक्ति होती है। एक्सटर्नल अभिव्यक्ति बताई गई है ये बताने के जी। लिए कि आनंद मैक्सिमम हो। हाँ, क्योंकि इस चीज को करंट डे में लोग गलत समझते हैं। हाँ, और हाँ। एक एक्सप्रेशन हो महाराज- गया है कि ये रासलीला कर रहे हो, लेकिन महाराज हाँ। तीसरी बात भी है, वो लज्जा घृणा भय सब छोड़ के मतलब हाँ, गोपियाँ आई थी वो बस। जितने सब पास, भी जितने भी पास अष्टपास छोड़ के सोशल जो वो है रेस्ट्रिक्शन, रूल्स रेगुलेशन, हाँ रूल्स, सब छोड़ उन के, सब के परे की चीज है। सब हाँ। परे की चीज है। क्योंकि ये महाराज सब हाँ घर बार छोड़ और के चले आते थे। हाँ, एक्चुअली वो इसलिए कि जीवात्मा उसको और इसीलिए परमात्मा का वो ये है। ऐसी ऊंची स्थिति है कि उसको जनरली बात नहीं करते, समझ में नहीं बात- आएगा लोगों को। हाँ लोगों को यानी बात भी- देहात्म बोध पूरी तरह चला गया है। सोशल कमिटमेंट्स, सोशल रूल्स रेगुलेशन जो है, विधि निषेध उसके परे चले गए हैं। ऐसी स्थिति है वो रासलीला। जी जी जी। महाराज एक ये भी विचार सुना था कि जब बहुत आनंद में एक से अधिक लोग मिलते हैं तो वो उत्सव है, और वो आनंद में ही फिर मिलते हैं और आनंद में ही विचरते हैं और फिर आनंद में ही जुदा होते हैं। तो ये उत्सव महोत्सव बन जाता है और ये बार बार नेचर उसको रिइंफोर्स करती है। तो एक बार अगर रासलीला हुई तो वो रिकरिंग हो जाता है नेचर में, हर कल्प में हर युग में वो होता ही होता है। ऐसा भी ठीक है, विचार सुना। वो ये है कि वो उच्चतम आनंद की उच्चतम अभिव्यक्ति कैसे होगी, वो कल्प हो या कभी भी हो, जी उच्चतम आनंद की अनुभूति कब होगी, कैसे होगी, और किस एक काल में, एक युग में एक बार रासलीला होती होगी, ये तुम्हारा कहने का मतलब। नहीं, हाँ एक युग में हुआ है तो वह हर युग में हर कल्प में वो घटना पुनरावृत्त होती है। इसलिए किसी महात्मा ने कहा कि रामायण की घटना एक बार नहीं घटी, वो हर जितनी बार प्रलय सृजन हुआ, हर बार रामायण हुआ, हर बार कृष्ण का रासलीला हुआ। वो ठीक है, यानी एक वो बार- ये रेफरेंस दूसरा हो जाता है ये चीज कि भाई ये जी, तो लीला जो है, ये जो मैनिफेस्टेशन जो संसार के जो जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो हर युग में होते हैं, ये एक चीज बोलना चाहता हूं। साइक्लिक। महाराज ये भी है कि जैसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये रासलीला सिंबल ऑफ दैट। हाँ, ये भी अच्छा है, दैट्स राइट, ट्रू। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जैसे ठाकुर स्वामी जी इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं मानते थे उसको, तो ठाकुर ने बताया कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट एज ए फिजिकल एग्जिस्ट, एक्सटर्नल ना ही हुआ हो, लेकिन किसी के मन में तो हुआ है, ऋषि मुनियों के मन में तो जन्नत का भाव हुआ है। दैट इज द ठीक। हाँ सेकंड क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, ऑन पेज 35 to 37 where it is Shri Ramakrishna as Radha is being discussed, उसमें मेरा सवाल है, is there a female principle in us also? Should we try to develop this aspect of us in our sadhana, and if so, how to do it? Now we have never been told to do so. अच्छा We have read all the literature, so much of Ramakrishna Mission literature. अच्छा We have met so many sadhus. okay. We have never been told to develop that feminine nature अपने बीच में है, उसको develop करो, never. And we need not worry about it. मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कहीं आपके लेक्चर में जब आपने ब्रह्मचर्य डिस्कस किया था, शायद इसका कुछ जिक्र हुआ था, ऐसा कुछ मैं शायद। अच्छा ना, वो इसलिए मैंने कहा था कि अगर ब्रह्मचर्य की साधना करो तो अपने को अगर नारी समझो, हाँ तो वो ब्रह्मचर्य की साधना आसान हो जाती है। ओके। तो ब्रह्मचर्य का साधना आसान करने के लिए, हाँ। बट उसके अलावा
हाँ हाँ, तो उसको डेवलप करने की बात कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा तीसरा सवाल महाराज जी, ऑन पेज 37 स्वामी जी सेज, ये सवाल तो हो चुका है एक्चुअली, वही हम जो लव इज ड्राई कंपैशनेट जो हम डिस्कस कर चुके थे, वो अब तीसरा सवाल था, तो इसको हम स्किप नहीं कर। नहीं, करो। अच्छा, मैं डिस्कस पूछता करो। हूँ। आई हैव सीन न्यू लाइट बाय द ग्रेस ऑफ द मास्टर। स्वामी जी कहते हैं, इफ आई हैड नॉट एक्सपीरियंस दिस लव, माय लाइफ वुड हैव बीन ड्राई एंड ड्रेरी। तो मेरा सवाल था, व्हाट इज दिस एस्पेक्ट? इसी इवन उद्धव ना, सिंह। इसे जो बात स्वामी जी कह रहे हैं हाँ हाँ, वही तो अभी डिस्कस हुआ है, लेकिन ये हो चुका है। हाँ नहीं सुनो, लेकिन ऐसा है जी, कि नाउ फॉर एग्जांपल जैनिज्म, जैनिज्म में देयर इज नो इमोशन। अच्छा, हाँ, और एसेटिसिज्म, ओके नो लव, ड्राई एसेटिक रिलीजन। ओके, तो ये भी एक पार्ट है जो स्वामी जी यहाँ पे है। स्वामी जी ने नोटिस किया हाँ कि अगर श्री रामकृष्ण ये बताते तो मैं भी ड्राई हो जाता। अच्छा, वैकुंठ, ये क्या वैकुंठनाथ क्या है, ये वैकुंठ का है इसमें? नहीं, मैं कह रहा था इवन उद्धव सीम टू हैव बीन ड्राई टिल ही मेट द गोपीज। वहां पे श्री कृष्ण जी ने उद्धव को इसी भाव का उत्पन्न करने के लिए गोपियों के पास Ituji's भेजा था। mic has to be shut. Ituji, a lot of disturbance coming from Ituji's mic. It's on. इतु संजय, मैं म्यूट करता हूँ जी। वो इतु को बंद कराओ तो। हो गया महाराज। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था, उद्धव को भी श्री कृष्ण ने भेजा था गोपियों के पास इसी भाव को डेवलप करने के लिए, मेरे को याद है। तो उसके बाद मेरा ये सवाल यही उठ रहा था कि आफ्टर ऑल वी हैव सीन स्वामी जी टू बी कंपैशनेट सिंस चाइल्डहुड। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो दैट्स ऑल। यानी एक तो लेवल, जैसे मैंने कहा है कि संज्ञा अपने जैनिज्म, जी तो जैनिज्म में एसेटिसिज्म और कंप्लीट त्याग, तो वहां पे कोई सेवा की बात भी नहीं आती है, एब्सोल्यूट जैनिज्म, स्ट्रिक्ट जैनिज्म। हाँ 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 अब स्वामी जी में कम से कम सेवा का भाव था, जी और स्वामी जी ठाकुर ने उसको भी इनकम्प्लीट को स्वामी जी को, और उन्होंने भक्ति भाव डाल दिया, जी जी इमोशन डाल दिया। जी जी। अब महाराज ये ऐसे अपने को समझ में नहीं। महाराज ऐसे कह सकते हैं कि जो उनका जो कंपैशनेट भाव था, दैट वाज मैस्कुलिन, और जब ठाकुर ने राधा कृष्ण का भाव डाला तो उसको फेमिनिन भाव भी उनके आ गया। हाँ, क्या पहला कंपैशनेट भाव था, वो क्या था? मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। और जब उन्होंने राधा कृष्ण का भाव डाला तो फेमिनिन भाव भी आ गया, उनका प्रेम भी उनके हृदय में आ गया, जैसे कह सकते। Swamiji, this is Another here which dimension जो I उन्होंने cannot कहा। comment upon. Swamiji, I'll tell you share one very interesting experience of a saint. You see, remember, we have to have number of questions more. Okay. Hmm. Okay. Maharaj, next question. On page 47, Mathur Babu says, now I understand that my worship of Mother Durga is successful because the master has taken food. So does it mean that Mathur Babu too felt that Thakur was an incarnation of God, or was it some other belief? Possibly. But so far as we know that Mathur Babu worshipped Kali. Acha. And Thakur differently. Right. So it is very difficult to authenticate, महाराज, मथुर बाबू शुरू में तो ठाकुर को तो एक पुजारी समझते थे ना। जी जी। और वो काली को अलग से वर्शिप, तो काली की तो प्रतिष्ठा करती हुई थी, सब हुई थी। महाराज एक बार मथुर बाबू दूर से बट देख रहे, मेरे को बोलने दो पूरा। तो इसलिए मेरे को ये कहना मुश्किल है, बाद में मथुर बाबू को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि खाली ठाकुर भी जो है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। उन्होंने आधा काली आधा शिव देखा था चलते हुए। हाँ। एट वन स्टेज इट मस्ट हैव बीन, आधा काली जब शिव काली और काला देखा तब से हुआ।
हाँ बोलो निवेदिता, क्या बोल रही थी? महाराज एक बार मथुर बाबू को दर्शन हुआ था जे ठाकुर एक तरफ से जब जा रहे वो काली है और दूसरे तरफ से जब आ रहे तो शिव है, इसलिए हाँ। काली दुर्गा वो ठाकुर में काली ही और देखते थे। ठाकुर हाँ एक हो गए। हाँ, हाँ। ठीक। तो मतलब उसको एक इनकारनेशन की तरह ही देखते थे। महाराज, 5वां क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। वन क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम लास्ट टाइम्स डिस्कशन 15 दिसंबर का, क्योंकि मैं मिस कर गया था। तो उसमें जब महेंद्रनाथ दत्ता ने ठाकुर को डिस्क्राइब किया था, व्हेन ही डिस्क्राइब, तो इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ठाकुर कंपेयर्ड टू मां शारदा, लक्ष्मी दीदी, No, point कुमार is, सेन। no, उन्होंने उसको listen. ऑर्डिनरी विलेजर बोल दिया था उसमें। ही लुक्स नहीं, लाइक वो तो लोग, सुनो। हाँ हाँ ये उन्होंने, जैसे हम अगर ठाकुर को देखें, कोई आदमी हमारे से मिलने आता है ना, हाँ, तो हम उसको आदमी देखेंगे कि उसने पीला कपड़ा पहना है, उसकी मूछें है, दाढ़ी हाँ। है, वो ऐसे चलता है, वो सा डिस्क्रिप्शन किया है, उसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है? तो अच्छा है। नहीं, एक वो प्रकार तो से कि ठाकुर एग्जैक्टली फिजिकली जैसे थे वो हैं। एक ह्यूमन हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ है। हाँ 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 हाँ। whereas whereas यस, others वो have अदर्स seen में तो differently. अपने भावों को मैंने वो डाल दिया उसके अपने ऊपर, ठाकुर अपने के ऊपर। अच्छा, हाँ, जी जी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक ठाक पक्का जैसे ठाकुर को उन्होंने देखा किया, और हाँ इतना क्लियर, एक छोटी छोटी चीजें पूरे चेहरे की इतनी हाँ डिटेल हाँ, में और कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल महाराज, उसका होठों का हाँ, तो इतना डिस्क्रिप्शन, अच्छा है कि बस। हाँ, होठों का डिस्क्रिप्शन, सब चीज का नो डिस्क्रिप्शन। भाई जी, भाई जो ऑब्जेक्ट यू मस्ट अप्रिशिएट इट अदर। बाकी लोगों ने तो ठाकुर के ऊपर अपनी भावनाओं को सुपरइम्पोज किया है, ईश्वर की भावना। जी महाराज। महाराज, मेरे एक दो सवाल और थे, मैं कर लूं? वो बाद में मेरे दिमाग में आया। वो एक तो ये था कि व्हाई डज ब्राह्मणी गिव अप द स्मॉल स्टैचुएट ऑफ रघुबीर, और उन्होंने उसको गंगा में बहा दिया। उसी तरह से जटाधारी जो थे, उन्होंने रामलला को भी गिव अप कर दिया। तो ये दोनों ने ऐसा विसर्जन क्यों कर दिया, या दे क्यों दिया? क्योंकि अभी तक प्रतीक की आवश्यकता थी, वो ओ, प्रतीक थे उनके पास में। अच्छा, वो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में था जब ना? प्रतीक ही थे, जब उसका प्रतीक का मैनिफेस्टेशन सामने हो गया, हाँ तो प्रतीक के उद्देश्य सफल हो गया। तो हाँ, तो मतलब एक हायर अब प्रतीक मैनिफेस्टेशन की देख। आवश्यकता नहीं है, मैं तो अब आसानी से बिना प्रतीक के हाँ ही भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वही हो गया जो ठाकुर कथामृत में कहते हैं कि जब लड़की होती है, बच्ची होती है, तो वो डॉल या उससे खेलती है, लेकिन गर्भावस्था में। हाँ। जब जब उसकी शादी हो जाती है तो वो सब रख देती है, क्योंकि अब उसको पति मिल गया। इसी प्रकार से जब हम लोग चलो लोग, भुवन चलो। महाराज जी, एक सवाल और था हमारा, हाँ हाँ। एक पर्सनल लेवल पे सवाल था कि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, तो कभी कभी तो ठाकुर की जो इमेज है, हम लोग उसको बहुत क्लियरली देखते हैं किसी किसी दिन, और किसी किसी दिन इतना क्लियर नहीं होता। इसकी वजह क्या है? वो बिकॉज ऑफ माइंड के ऊपर है। ओ, माइंड जो है तमोगुणी हो गया, हम्म, रेस्टलेस हो गया, हाँ, डल हो गया, किसी प्रकार का हो गया। जी जी, तो ये मेंटल कंडीशन के ऊपर है। इट इज अबाउट द कंडीशन ऑफ द माइंड। राइट राइट, ठीक है महाराज, दैट्स ऑल महाराज। प्रणाम महाराज। Pranam Maharaj, मेरा first question, page हाँ 34, second last paragraph. Miss Tarini Ghosh asked for vision from Sri Ramakrishna and she was blessed with it. How can we prepare ourselves to ask and receive such blessings from Sri Ramakrishna? भाई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना करनी पड़ेगी। जी। हाँ, इसमें क्या है? Yes. और सेकंड पॉइंट, यू सी, पहली वो क्या है कि डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू विजन। निस्तारिणी को हो गया, होगा। डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस, because there are so many great devotees, so many sannyasis. Not many of them hardly get any vision. Some might get more vision, some may not get throughout their life. They may not get vision, but they will be great saints.
So don't give importance to them. Yes, Maharaj. Next question. Page 36, second paragraph mentions about Radha's renunciation. How can renunciation come naturally to us instead of being a self-imposed preparatory discipline? You see, we have to do it with preparatory discipline because vichar karna padega, vivek karna padega. By discrimination, renunciation comes. Remember, विवेक vairagya comes because by discrimination. Then love, true love for God. Yeah, after say, so renunciation can also come if you truly love God. So renunciation can come by two things. One is by discrimination and another by love of God. Radha, she was intensely love for God, that's why she could give up everything. If you have intense love for God, you give up everything. Your mind completely becomes separate. Or you do it by vichar, discrimination. You got it? Yes, Maharaj. Hmm. Then the third question, page 51, second paragraph. Vijnananandji's second meeting with the master, when the master was in samadhi, gazing at something and immersed in an ocean of bliss, why did his whole spinal column become like a thick rope? You see, spinal column is what? There is a manifestation of nervous system, you know. Medically, it is nervous system. And mystically, it is the manifestation of the Kundalini Shakti. Shakti, and whatever is happening is by thinking, by meditation. All this will happen because of the nervous system. So nervous system becomes active. That is the mystical experience of Kundalini becoming thickened. That's all. Spinal column became thickened. Yes, Maharaj. Could you understand it? Yes, Maharaj. Huh. Auntie. Now, question number 4, page 52. Even the master was surprised how the woman came to know that the master was swimming in an ocean of Sachidanand. How does such super fine intuition be found in seemingly ordinary women performing household duties, and how can we develop such intuition? ऐसा है, this is because of pure simplicity, innocence, saralata, innocence. If you are simple, no guile, अरे ये हमारी एजुकेशन जो है हमको सब गड़बड़ कर देती है. We now start becoming, we want to become, you want us that we must look very nice. People must consider that we are great. All sorts of things are there. But the simple women of village, absolutely simple, guileless village, innocence. उसी के कारण that's why they were able to appreciate Sri Ramakrishna. Yes, Maharaj. महाराज साधना भी तो होगी शायद ना. No, साधना तो खास करके तो innocence थी उनकी. पर दूसरी औरतें तो नहीं समझ सकी ना, वही खाली समझ सक रही थी. हाँ, दूसरी जो भी तो भी इनोसेंट साधना था. तो आध्यात्मिक झुकाव होना चाहिए. Spiritual inclination plus innocence. प्लस इनोसेंस. And फिर fifth question है, is renunciation the goal or is it the means to achieve parabhakti? What do you mean by parabhakti? By parabhakti, I mean ananya chintan, supreme devotion, in where one forgets one's mind and body. In the in the bhakti shastras, parabhakti is highest. It is possible only in incarnations. ईश्वर कोटि के लोगों में भी पराभक्ति होती है. So don't ask a question related to parabhakti. But so far as renunciation is concerned, your renunciation is the means, and bhakti is the goal. Yes. But renunciation, if you have, then you will get parabhakti or bhakti. If you have got true bhakti, then renunciation will automatically come. Yes. Next, last Satish. question.
Oh, I Yes, have yes, one huh. last question. Page 33, Manamohan with Mitra's vision at Puri. Does grief bring about Ananya Chintan or devotion to God to such an extent that it brings spiritual visions? कौन सा पेज बोलो तो? जो this is page 33. Manmohan Mitra, when he lost his daughter and wife, then he had a vision of Sri Ramakrishna at Puri temple. So my question is, does grief bring about Ananya Chintan or devotion to such an extent? See, listen. In this description, the two things, and it is Manmohan Mitra and wife went to Puri after death of daughter. Wife also died from cholera. One day, Manomohan entered the temple and saw Sri Ramakrishna in place of Jagannath on the altar. Now, it may not be related to his grief. And every time grief does not produce spirituality. संसार में तो बहुत सारे कष्ट होते हैं ना, किसी को नहीं होता. If a person is sincere, you need not wait for grief. Of course, there are examples in which जीवन में दुख आएगा तो भगवान की ओर मुड़ते हैं, नहीं तो नहीं मुड़ते हैं लोग, ये बात है. तो भगवान में एक के बाद एक जब कष्ट देते हैं तो भगवान की तरफ मुड़ते हैं आदमी. तो दैट ऑल्सो इज ट्रू. अब मैं समझ गई, ठीक है. हाँ जी. सतीश विग. प्रणाम महाराज. हाँ जी महाराज. My first question. Thakur was Jagannath. As Jagannath, image is infinite. That is, his limbs unending. Is the message that is thought to be given is that Thakur also is infinite like Jagannath? You see, Ji Maharaj. Our instructions by our Guru Yatishwaranji etc. is there that when you sit for meditation, first you should meditate on the Satchidananda, all Paramatma. Sarva Satchidananda yani all pervading consciousness. Start with that meditation. You cannot remain it long because you are not in the habit of doing it. After that, you consider that Satchidananda Paramatma has taken form of your Ishta. And then you meditate on the Ishta. After meditating on your Ishta, the physical and Satyugya, Naam, Guna Dhyan, Swarup Dhyan, and Rup Dhyan, Guna Dhyan, also qualities of Sri Ramakrishna, ya our Ishta ke Ram ka, sabki qualities, etc. all meditate. And again, when you complete the meditation, you merge into the Satchidananda. Ji Maharaj. Maharaj, got my point? Yes, I got your point, Maharaj. But the problem is कि हमें इसकी जो है वो हैबिट नहीं है, हमें जो है ना डिफिकल्ट लगता है. नो वहाँ तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना, जी, ये जो यतीश्वरानंद जी इंस्ट्रक्शन देते थे, वो तो था कि ध्यान करने जब दीक्षा होती थी तभी बोलते थे. जी. दीक्षा के बाद में मैंने तो खुद ही अटेंड किया है. दीक्षा के बाद में 25-30 जिनको दीक्षा दी गई है उनको बैठ के वो आधा घंटा तक बताते थे ध्यान कैसे करना. उसमें कहते थे कि ये सोचो कि तुम जब ध्यान करने बैठो तो सब तरफ सच्चिदानंद है और वो सच्चिदानंद ने तुम्हारा इष्ट का रूप ध्यान किया ले लिया है, उसके इष्ट का ध्यान करो और उसके बाद में जब समाप्त करो तब सच्चिदानंद में विलीन कर लो. तो यहाँ पे वो तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये तो इंस्ट्रक्शन है, करना पड़ेगा. जी महाराज. मैंने लास्ट क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा है. I am fish swimming freely in the ocean of consciousness. Wait. ये तुम्हारा प्रश्न, तुमने ये कहा था कि वो होगा नहीं, वो आप करते चले जाइए, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा. एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब तुम सच्चिदानंद में शुरू में करोगे, उसके बाद में वो सच्चिदानंद बढ़ता चला जाएगा. उसके बाद आसानी से सच्चिदानंद में ध्यान होने लग जाएगा. राइट महाराज, राइट. महाराज एक प्रश्न है मेरा, ये जो आप कह रहे हैं जो पहले सच्चिदानंद का ध्यान करना उसके बाद, तो हम लोग तो उल्टा करते हैं, मतलब ठाकुर की इस मूर्ति से जाके फिर सच्चिदानंद में जाते, तो शुड वी आल्सो स्टार्ट? ठीक है, तो वही तो हुआ.
अब वो नहीं तो नहीं, ठीक है, ठाकुर के सेकंड पार्ट मूर्ति का करते ध्यान हैं, करो। पहला पार्ट नहीं। नहीं ठीक है, पहले तो जी, जी, 2 स्टेप तो हो गई ना। हाँ 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 हम ऐसे करते हैं फर्स्ट महाराज। स्टेप से यू स्टार्ट, रूप ध्यान से शुरू करो हाँ हाँ, यही बोल रहे हैं। और अंत में उसको विलीन कर दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि महाराज पहले सच्चिदानंद जी, वो सच्चिदानंद यतीश्वरानंद जी हमको बोले थे, हाँ, तुमको नहीं बोले? अच्छा, नहीं मैंने नहीं, इंस्ट्रक्शन सुनी थी, वो हाँ हाँ हमको बाद में करते थे। और मुझे भी हाँ कहा था हिंदी लोगों तो हिंदी का ट्रांसलेट करके सुना दो इनको, तो ऐसा हाँ, क्योंकि तो डजंट माइंड का मैटर ऐसा है, माइंड का ऐसा है कि नीचे से ऊपर जाने में इजी होता है। राइट मतलब राइट। ओके रूप ओके, ध्यान, जहाँ से गुण शुरू ध्यान। करो, जहाँ से हाँ शुरू करो। हाँ हाँ, ठीक है। जी जी महाराज, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि पहले अपना इमेज का ध्यान करके, फिर उसमें ठाकुर का ध्यान करके, फिर ये विचार करता हूँ कि ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है। महाराज जी, मैं एक प्रश्न है मेरा इस सिलसिले में। वेट 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 वे सतीश को पूरा करने दो। इसी सिलसिले में महाराज मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है वो 6th क्वेश्चन, वो भी इसी से रिलेटेड है। आई एम फिश स्विमिंग फ्रीली इन द ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। महाराज, कैन वी मेडिटेट इन दिस मैनर ऑन गॉड जस्ट एज ओशन ऑफ ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस? रुक, ये देखो, याद रखो। जी जी यू, आई मीन प्लीज, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ये हैबिट है, डोंट गेट मिक्स्ड अप इन मेडिटेशन टेक्निक, सो मेनी मेडिटेशन टेक्निक। जी महाराज, चंचल है मन। कभी कर लिया तो कर लिया, और अगर स्टार्ट करो, फिश की स्टार्ट करो, तो फिर उसको फिर रेगुलरली करना पड़ेगा। जी महाराज, जिसके Will you साथ do जो it? जैसे जैसे आपने कहा ना कि पहले सच्चिदानंद का ध्यान करना, तो सच्चिदानंद क्या है? ओशन ऑफ ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस। देखो, ये बातचीत करना, ओशन की बात हुई, ये तो डिस्क्रिप्शन होता है ना, थ्योरी का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अभी बैठे हैं, मन में ध्यान करने बैठे हैं, तो क्या ओशन की बात करोगे, ध्यान करोगे? अगर ओशन का फिर करना है तो ओशन का ही करो, फिर वो दूसरा, वो नहीं सब जगह सच्चिदानंद है, उसने शरीर लिया, वो मत करो। राइट राइट सिलेक्ट महाराज। एनी वन टेक्निक, जी जी दैट इज माय पॉइंट। गेट आई गॉट योर पॉइंट महाराज। उसमें ओशन नहीं लाना, मतलब कि कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल, ब्लिस है, इनफाइनाइट है, ऐसा ऐसा करना। अब तुम जानो भाई, हमको नहीं बोलो। You mix up things and then you create problem. Select one technique of meditation and hold on to it. महाराज Not ओशन at this age, बाबा ये तो आपको 50 साल पहले से करना चाहिए था। अब यहाँ पे बात नहीं उठती। एक टेक्निक बना लो और उसको किए जाओ सारा जीवन। सो कई से कड़ी टेक्निक है, जिसमें सब में सच्चिदानंद की बात आती है, वो समुद्र की बात आती है, किसी में आकाश की बात आती है, किसी में ज्योति की बात आती है, ज्योति हुई तब रख चली गई, ये सब बातें होती हैं। अब एक टेक्निक ले लो। जी महाराज। तो समझने की बात एक चीज होती है, जैसे जैसे सच्चिदानंद समुद्र है और उसमें मछली है, तो वो समझने की बात है। और अगर करना है तो फिर एक करो और दूसरा मत करो। महाराज, मेरा कहना ये था कि ओशियन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, तो ये तो एक सिंबॉलिक हो गया ना। आज कहने का भाव ये है कि वो गॉड इज इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, तो इस तरह से भाव लेना। अब भाई तुमको जो ठीक समझे तो, हम नहीं बता। मैंने ये कहा 2 टेक्निक हो गई है, ये 2 हो गई हैं। अभी बात हुई ना, अभी 2 टेक्निक हुई। तो जी एक जी है महाराज। सोचो कि सर्वत्र सच्चिदानंद है, ये सोचा ना, जैसे आकाश की तरह। जी 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 जी। तो ये उसके 2 हो बाद गए। ने उसने मन अपने आत्मिष्ट का रूप धारण कर लिया, ठीक और फिर उसके बाद फिर सच्चिदानंद हो। एक टेक्निक हुई है, और दूसरी जी टेक्निक हुई जय सारा सच्चिदानंद क्या है, वो एक सागर है, और उसमें हम मछली हैं। नहीं, वो तो अलग तकनीक होगी महाराज। तो 2 टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट हो गई ना। वो मैं ठीक ठीक महाराज, ठीक। इसको महाराज, सिंबॉलिक नहीं बाबा, नहीं ऐसा है कि तुमको कई जितने भी है ना, ये निराकार के ध्यान की भी कई टेक्निक मिल जाएंगे आपको, जी महाराज। और उसमें से एक लेकिन टेक्निक सिलेक्ट कर लो। महाराज, निराकार ध्यान जो है ना वो मुश्किल होता है, वो नहीं, कहना। तुम्ही ने प्रश्न उठाया ये। महाराज एक प्रश्न है विचार आप। से होता है, लेकिन
उसको ध्यान अगर करने के लिए तो फॉर्म चाहिए ना, विचार होता है, उसमें विचार होता है। तो अब देखो भैया, ऐसा है, विचार ध्यान जो है वो तो एक रूप, यानी मन से एक इमेजिन करना, फॉर्म इमेजिन करना एक ध्यान होता है, लेकिन जी विचार की प्रोसेस भी ध्यान का ही अंग होता है, दूसरे प्रकार का ध्यान होता है, जी जी उसको भी ध्यान कहते हैं। जी महाराज, जी महाराज। महाराज राइट महाराज। एक प्रश्न है, आप जो बोल रहे हैं जैसे पहले सच्चिदानंद का ध्यान करके बाद में उसको ठाकुर के रूप में मतलब मर्ज करना, तो वहां पर गुरु का तन कब आएगा वो बताइए। पहले वो गुरु को तो पहले प्रणाम कर देते हैं। पहले बार, हाँ ये पूछ रही, ओके। जी महाराज, जी महाराज। महाराज सेकंड क्वेश्चन पूछो महाराज। हाँ, सेकंड क्वेश्चन महाराज, pages 38, 39. Thakur was both Purusha as well as Prakriti. Atul हाँ? Grish brother Thakur was both Purusha and Prakriti. Purusha Prakriti दोनों पुरुष थे एंड महाराज। प्रकृति। Purusha and Prakriti. Atul also saw in his body left side Radha, right side Krishna. Does this mean Purusha and Prakriti are one, and at the same time also two? Does it show that Thakur is the embodiment of all principles, Vedanta, Shankar Yoga, or other principles, महाराज? ओ बाबा, देखो तीनों फिर मिक्स कर रहे हो ये। जी पुरुष प्रकृति अलग किया है, वहां वेदांत को क्यों लाते हो? महाराज, जब पुरुष उन्होंने पुरुष सुनो, पुरुष प्रकृति सांख्य में है, राइट राइट महाराज, राइट तो वेदांत नहीं आता वहां पे। महाराज, मेरा कहना ये है कि जब उन्होंने अतुल ने देखा कि उनके राइट साइड में राधा है और लेफ्ट साइड में कृष्णा है, तो वो एक हो गए ना महाराज। अरे बाबा, ये भक्ति है। अच्छा, तुम ये भक्ति बता। और सांख्य और वेदांत सबको मिला रहे हो। जी जी जो देखा, राधा को अलग देखा, राधा और कृष्ण को एक साथ देखा, जी जी। तो ये हुआ भक्ति। अच्छा, वो सांख्य क्यों का, पुरुष और प्रकृति सांख्य क्यों ला रहे हो यहाँ पे? अच्छा, राइट राइट महाराज। और फिर ठाकुर वेदांत को भी ला रहे हो, मत करो ऐसा। जी महाराज, पर ठाकुर तो एम्बॉडीमेंट थे सभी प्रिंसिपल्स के, जितने भी अरे हैं बाबा, वेदांत तुम के। एक एम्बॉडीमेंट तो ठाकुर सैकड़ों चीजों के थे। जी जी डोंट मिक्स अप दिस थिंग्स। जी जी महाराज। Even for meditation, even from understanding, these two are things different. जब ठाकुर से पुरुष प्रकृति की बात करेंगे तो ठाकुर वेदांत सांख्य की बात करेंगे। जब राधा कृष्ण की बात करेंगे तो ठाकुर ही राधा कृष्ण की भक्ति की बात करेंगे। ठीक महाराज। 38, 39 महाराज, थोड़ा सा पढ़े उसमें क्या लिखा है। पेज 38। बोलो। 38 मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको। तो फिर थोड़ा आगे चलो, बताओ, जल्दी बताओ क्या है उसमें। ठीक ठीक महाराज, उसमें भी पुरुष और प्रकृति की बात की है ना शायद। 38 जो पेज है उस पर पुरुष और प्रकृति की बात की है। अच्छा, 38 में। हाँ, तो पुरुष और प्रकृति हो गया, तो जी जी वो आधा कृष्ण, आधा पुरुष और आधा प्रकृति। जी महाराज, जी महाराज। The master also entertained them by acting as a woman, kirtan singer, Radha and Krishna. He mimicked those singers. I would meditate day and night on Sita Ram. At those times, I would constantly राधा कृष्ण का वर्णन नहीं यहाँ the पे। form of Sita and Ram. Again, I used to. वैसा है ना कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसके माध्यम से देखना पड़ेगा, मिक्स करने से नहीं होगा। राइट राइट महाराज, मेरे पास वो आर्टिकल है नहीं, ढूंढना पड़ेगा। पुरुष एंड प्रकृति ये पढ़ना आपने, आप पढ़िएगा ये कहाँ लिखा है। ये लिखा है सामने। I would constantly behold the forms of Sita and Rama, and again I used to be absorbed in the ideal of Radha and Krishna, the
हार्मोनाइजेशन ऑफ टू आइडियल्स, पुरुष एंड प्रकृति। महाराज यही पूछा था मैं। यही इधर और भी लिखा हुआ है, later the master told the devotees about his experience of Purusha and Prakriti. Oh, what state I passed through. I passed some days absorbed in Shiva and Durga, some days absorbed in Radha and Krishna, and some days absorbed in Sita and Rama. Assuming Radha's attitude, I would cry for Krishna, and assuming Sita's attitude, I would cry for Rama. I would meditate day and night on Sita and Rama. At those times, I would constantly behold the forms of Sita and Rama. Again, I absorbed in the ideal of Radha and Krishna, the harmonization of two ideals, the Purusha and Prakriti. महाराज यहाँ जोड़ रखना है। So what is your question? What is your question? महाराज यही था कि उन्होंने जब राधा और कृष्ण की बात करते हैं, सीता और राम की बात करते हैं, तो साथ साथ में पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं। तो देखो, जो राधा है वो पुरुष है, राधा है प्रकृति है, और कृष्ण है पुरुष है, राम है पुरुष है, सीता प्रकृति है। जी। और नाम कोई भी बोल दो, राधा कृष्ण का भी नाम है, सीताराम का भी नाम है, शिव और पार्वती का। अब यहाँ पे माँ शारदा और ठाकुर भी कर दो, जितने सब लगा दो, जहाँ भी डबल डबल है वो लगा दो। यानी दो चीजें जो हैं, ये पुरुष और प्रकृति सारे जगत में जो है, श्री रामकृष्ण ने दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस किया, एक साथ उन्होंने दिखाया महाराज, अपनी देह में दिखाया कि दोनों ही है मेरे में, पुरुष भी है प्रकृति भी है। हाँ ठीक है, अगर जो ये जिस भाव में रहो तो उसको लो। जी महाराज यही मेरा प्रश्न था कि उन्होंने सभी भावों को दिखाया उन्होंने अपने शरीर में। महाराज जी यहाँ पर हार्मोनाइजेशन आइडियल्स का मतलब क्या होगा? द हार्मोनाइजेशन ऑफ टू आइडियल्स, पुरुष एंड प्रकृति। हार्मोनाइजेशन तो हाँ ना, यही तो बोला कि ये दोनों पुरुष और प्रकृति ये विरोधी नहीं है, परस्पर पूरक है। ये हार्मोनी हो गई। ये तो वेदांत का प्रिंसिपल हो गया हमारा, है मतलब एक ही है। कौन सा वेदांत है? वेदांत में द्वैत वाला वेदांत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, ये प्रभु से आगे चलना पड़ेगा। जब पुरुष और प्रकृति एक हो गया तो द्वैत हो गया। वेदांत में तो सब जो लीन हो जाता है, सच्चिदानंद। वेदांत में तो अद्वैत वेदांत में तो पुरुष प्रकृति नहीं रहता, हाईएस्ट है, एक हो जाता है। ऐसे में कैसे? ये पुरुष प्रकृति जो है ना, ये तो सांख्य तक ही रहता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्टोन एम्बलम ऑफ विष्णु? शालिग्राम। महाराज ये जैसे शिवलिंग होता है, होती है, एक शिला स्टोन होता है, पत्थर होता है, तो वो उसके लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे शिवलिंग होता है ना। जी महाराज। शिवलिंग भी तो पत्थरी होता है, तो दोनों में फर्क क्या होता है महाराज? अरे उनके चिन्ह से दोनों में डिफरेंस क्या होता है, शिवलिंग और विष्णु एम्बलम में? अरे उनके सब लक्षण हैं, उनके सब वर्णन होता है, भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये शिवलिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वैसे शालिग्राम का भी वर्णन होता है, तो पंडित लोग जो है वो देख के बता देंगे आपको, जो जानते होंगे। राइट महाराज, हम नहीं बता सकेंगे। कामारपुकुर में है महाराज ऐसा शंकर चक्र गदा पद्मधारी अगर विष्णु का ये है प्रतीक है, तो फिर शिवलिंग ये शालग्राम का क्या जरूरत है? अब जब विष्णु शिव जी का भी लिए, फिर शिवलिंग की क्या जरूरत है? और क्या सर, वो ऐसा है कि विष्णु भगवान की मूर्ति पूरी लगाने के बजाय शालिग्राम जी की छोटी सी पूजा कर लेने से भी हो जाएगा, और शालिग्राम जी जो रखते हैं वो अपने पास जेब में धारण करके भी चलते हैं, जहां भी जाएंगे वहां साथ साथ रहेगा, तो ये एडवांटेज हो गया। ठीक है, सिंबॉलिक, वो भी सिंबल दोनों प्रतीक है, दोनों अपने अपने हिसाब से है। शालिग्राम we cannot imagine a person, लेकिन शंकर चक्र गदा पद्मधारी विष्णु जी को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, अच्छा लगता है। अब भाई आप लोग जानिए इसके बारे में। वो भक्त ऐसे हैं ना, जो जहां भी रहेंगे वो साथ साथ ही रहना चाहते हैं,
तो उनके लिए शालिग्राम लेके पूरे भारत भ्रमण करना आसान है। ठीक है, चलो ये अपना अपना भाव है ना। जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन। man's spiritual consciousness is not awakened unless his kundalini is aroused. Kundalini is Chaitanya, as Thakur called it, Chaitanya Vaju. One does not have knowledge without awakening of Kundalini. Maharaj, whether in Bhakti part 2, one cannot have love for God if his Kundalini is lying in lower centers. तो उसके लिए भी कुंडली जागृत जरूरी है। देखो देखो, सिंपली समझ लो जी महाराज जी। हमारी एक फिजिकल एनर्जी है ना जी महाराज। हम चलते फिरते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हाथ चलाते हैं, एक ये फिजिकल एनर्जी हुई तो। जी महाराज। अच्छा, सेकंड ध्यान, हम बातचीत करते हैं, मेंटल एनर्जी हुई। राइट, यू अंडरस्टैंड मेंटल एनर्जी। जी उसी महाराज। प्रकार से एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसको कुंडलिनी बोलते हैं, बस। दैट्स राइट। महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे उन ठाकुर ने कहा कि नॉलेज ज्ञान नहीं हो सकता जब तक कुंडलिनी आपकी जागृत ना हो, जैसे मतलब ये है कि सुनो सुनो, मतलब ये है कि जब तक आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। अब कुंडलिनी सबको लेके झगड़ा मत करो, मैंने ये इसलिए समझाया। ठीक, एक फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो स्पिरिचुअली अवेकन जब तक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा, उसको कुंडलिनी बोलते हैं। चाहे प्रेम हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे राजयोग, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान जो है तो किताब पढ़ा तो वो तो मेंटल लेवल पे हुआ, वो से कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज, जो समाधि होती है ज्ञान में, ज्ञान समाधि होती है सुनो उसमें सुनो, तो नो 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 नो, वो कुंडलिनी होगी, वो समाधि जब होगी कुंडलिनी होगी। जी नहीं महाराज, जो ठाकुर कहते हैं ना, one does not have knowledge without awakening of kundalini, ये ठाकुर ने लिखा। हाँ, तो नॉलेज कैन नॉट अकर विदाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये मतलब है कुंडलिनी का अर्थ है। अच्छा महाराज, तो प्रेम, जब प्रेम होता है महाराज, प्रेम की समाधि होती है तो भाव हाँ, समाधि होती प्रेम है। अगर समाधि होगी तो कुंडलिनी जागृत होगी। अच्छा, वो कुंडलिनी के कारण होगा। राजयोग में भी ऐसे ही होगा, सभी में, जैसे मतलब सभी लेवल में, ज्ञान जब योग, समाधि, राजयोग, भक्ति योग, जहाँ पे कुंडलिनी जब मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसको कुंडलिनी बोलते। ठीक महाराज, मैं यही मेरा नहीं, क्वेश्चन तुमको सुनो, मैं 3 ये बताया, उसको जरा से अच्छी तरह देख लो। एक है जी महाराज। फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल लेवल, हमारा हाथ, खाना खाता हूँ, बात करता हूँ, चल फिर रहा हूँ, ये फिजिकल हो गया। फिजिकल। मेंटल, मैं मन से बातचीत, मन से सोच रहा हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ, ये मेंटल हो गया। एक उसके बाद अगर स्पिरिचुअल लेवल है, वो दोनों से अलग है। अलग है। बहुत सारा लेक्चर दे दिया मैंने, प्रवचन दे दिया, वेदांत पढ़ लिया, वो सब फिजिकल मेंटल लेवल पे हुआ, स्पिरिचुअल नहीं हुआ। नहीं जब महाराज, कुंडलिनी जागृत होगी तभी वेदांत समझ में आ जाए, वेदांत में एक्सपीरियंस हो जाए। जी जी महाराज, मेरा भी यही क्वेश्चन, that was my question. Without spiritual awakening nothing can happen, either love or knowledge or समाधि, कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी, जब कोई जप करते हैं तो वो क्या फिजिकल होगा, मेंटल होगा, स्पिरिचुअल होगा? अभी केवल मेंटल पे रहता है, पे रहता, उसमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि नहीं होता। हमारा मन जो है लोअर इसीलिए सेंटर में सारा रहता है। जीवन इतना जप करते हुए जहाँ के हैं वहां के वहीं रहते हैं। जी महाराज। कभी सतीश, और कोई क्वेश्चन? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। टू टॉक ऑफ नॉलेज फ्रॉम मियर बुक रीडिंग एंड हेरेसी। तुम्हारा माइक ठीक रखो तो सुना नहीं आ रहा है। जी 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 महाराज, ये उसमें लिखा है उन्होंने, टू टॉक ऑफ नॉलेज फ्रॉम मियर बुक रीडिंग एंड हेरेसी, व्हाट विल यू अकम्प्लिश? हमारे व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो हम जो यही करते हैं ना, नॉलेज, बुक रीडिंग नॉलेज और हेरेसी, जो सुना है सुनाया है उसी की बात करते हैं, तो व्हाट विल वी अकम्प्लिश? वो कुछ नहीं होगा, सारा जीवन तो निकल गया ना, यही पढ़ते रहे, कुछ मिला क्या? जी महाराज, तुम बताओ। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारा, कुछ तो होना चाहिए ना।
महाराज जी, पर ये बात तो सही है कि श्रवण मनन निधि ध्यान, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मनन कैसे करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो निधि ध्यान कैसे करेंगे? हाँ, नहीं तो करिए ना, आप करिए उसको। हाँ, तो पढ़ने से ही होगा। उससे यही एडवांटेज होगा कि आप न्यूज़पेपर और पॉलिटिक्स के बदले ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। बस उससे फायदा तो होगा। जहाँ के थे वहाँ स्पिरिचुअली, जहाँ के थे वहीं के रहते हैं सारा जीवन। श्रवण करने के बाद भी पढ़ते हैं, डिस्कस कर लिया, जूम मीटिंग कर लिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? महाराज मन सात्विक तो होता है, मन सात्विक तो होता है। उन्हें ठीक है, तामस रज से बाहर निकल के हम सात्विक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा है तो करो उसको। महाराज जी, उसका चिंतन तो करते हैं ना बीच बीच में, करते रहिए, जो पढ़ते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ओ अच्छा, They're all preparatory. हाँ, हमारे लास्ट क्वेश्चन तो हो गया, उसी में मैंने पहले कर दिया था उसके साथ ही। ठीक है, हो गया। जी हो गया। प्रणाम महाराज। महाराज जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता था। वेट, इसके बाद में कौन है? निवेदिता। हाँ हाँ जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न है जो शुरू में फर्स्ट स्टार्टिंग से, डिवोटी शुड ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ ईश्वर, ऐसा हमको कहा जाता, बट ठाकुर वेन वांटेड टू एम्ब्रेस जगन्नाथ, इट वाज रिवील्ड टू मी, ठाकुर कहते इट वाज रिवील्ड टू मी, यू हैव एज्यूम्ड दिस ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर एस्टैब्लिश विथ ह्यूमन बीइंग्स द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड, फादर एंड मदर एंड सन, प्लीज एक्सप्लेन, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? विद गॉड रिलेशन, हाँ हाँ फिजिकल रिलेशन यदि करना हो हाँ तो ये शरीर वाले लोगों से करो, माता पिता भाई बहन वगैरह से। अच्छा मेंटल, अगर स्पिरिचुअल रिलेशन करना हो तो मेंटल लेवल पे होगा, हाँ हाँ मेंटल लेवल पे होगा। फिजिकल स्पिरिचुअल रिलेशन, गॉड के साथ रिलेशन जो होगा वो हाँ मेंटल लेवल पे होगा, फिजिकल लेवल मत करना। हाँ, तो ठाकुर जाके एम्ब्रेस करने लगे, एम्ब्रेस करने, हाँ हाँ हाँ, अरे अब अरे वो समझा, वहां नहीं, हाँ वो ये फिजिकल लेवल पे मत करो, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, मनी में करो, मनी मन करो। अच्छा अब समझ गया हम्म। मैं। हाँ। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड निस्तारिणी देवी वांट टू सी राधा एंड कृष्ण टुगेदर, इज इट द हायर थिंग, और 34 पेज में है, पहले क्या उन्होंने है? कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का दर्शन किया, फिर वो फिर से ठाकुर को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे कि मुझे राधा और कृष्ण का एक साथ दर्शन चाहिए? क्योंकि वो कृष्ण की भक्त है ना, इसलिए। नहीं, राधा के साथ क्यों, वही पूछ रही मैं। नहीं, वो कृष्ण के लोग जो है ना, हाँ हाँ तो उसमें राधा कृष्ण का दोनों का दर्शन को बहुत ऊंचा मानते हैं, हाँ, तो यही पूछ रहे, ओके, हाँ हाँ ठीक है। थर्ड प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन राम, वो जो लास्ट जो है वो आप जरा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है? लास्ट में सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद का है ना वो, मैं पेज बताओ, पेज बताओ। बता रही, लास्ट एकदम। सच्चिदानंद। हम्म। ये जो है लिखा है ना लास्ट में, मास्टर टू एम, देयर इज नो आउटसाइडर हियर, सीक्रेट बता रहे उनको, इट इज इट सेड आई incarnate myself in every age, and I thought that I myself was saying these words out of mere fancy. I kept quiet and watched. Again Sachidananda itself spoke, saying Chaitanya to worship Shakti. I saw that it is fullest manifestation of Sachidananda, but this time the divine, this time the divine power is manifested through the glory of Sattva. ये इसका नहीं अर्थ समझ ऐसा में। है हाँ कि जब भगवान अवतार लेते हैं, हाँ भगवान ने परशुराम अवतार लिया जी हाँ तो उसमें तो वो रजोगुण था, खूब था, हाँ मार धाड़ किया, युद्ध किया, हाँ हाँ लेकिन वो सच्चिदानंद था, लेकिन वो रजोगुणी सच्चिदानंद। ठीक, हाँ हाँ राम में भी सच्चिदानंद रजोगुण था, हाँ
कृष्ण भी रजोगुण सत्वगुण दोनों था। हाँ, यहाँ पर इस बार जब मैनिफेस्टेशन हुआ है हाँ, तो सच्चिदानंद का उसमें क्या है, उसमें ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन तो सत्वगुण से हुआ है। हाँ, यहाँ पे ठाकुर के अंदर कोई बाहर रूप भी नहीं है, राम जैसा कृष्ण जैसा रूप भी नहीं है, हाँ, 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 कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जाके प्रवचन स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे प्रवचन दिए होंगे, ठाकुर ने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे सत्व गुण का मैनिफेस्टेशन ज्यादा था, हाँ, 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 यही तो लिखा है। अच्छा। I saw that the fullest manifestation of Satchidananda, but this time the divine power is manifested through the glory of Sattva. वही तो कहा, हाँ, जो सच्चिदानंद का पूर्ण अभिव्यक्ति तो हो रही है, हो रही है। हाँ, लेकिन वो सत्व गुण के माध्यम से हो रही है, ये बात। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों लिखा है चैतन्य टू वर्शिप शक्ति? चैतन्य देव, हाँ, चैतन्य देव दे राधा के भाव में रहते थे ना। अब भाई पता नहीं वो वहाँ चैतन्य, हाँ, यहाँ क्यों तो ठाकुर बोल शक्ति रहे की हैं, क्या है उन्होंने वो? उपासना की सुनो है। सुनो, हम्म, Harish was when Harish saw me, I saw Satchidanand come out of the seat and said, I incarnate. वही सच्चिदानंद जो है हर बार में अवतार लेते हैं, तो आई myself saying these words may keep God. वही सच्चिदानंद ने पुनः कहा, मेरे भीतर जो सच्चिदानंद है उसने कहा कि मैं बार बार अवतार लेता हूँ, हाँ, और उस सच्चिदानंद ने कहा कि चैतन्य भी हुआ, उसने शक्ति का अवतार लिया। ये सच्चिदानंद यानी भगवान उनके भीतर से बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए हमारे। हो गया कि नहीं हुआ? अभी आज केवल 6 लोगों ने क्वेश्चन पूछे, नहीं इतने पूछे कि बस खत्म ही बड़ा 1-2 घंटा लगी। कितने लोग पार्टिसिपेट किए संजय? हमारा देवाशीष का सवाल था कुछ। देवाशीष, हाँ भाई देवाशीष बोलो। हमारा ये प्रश्न है कि आपने अभी बताया क्या शुरू शुरू में आप सच्चिदानंद का ध्यान करो, उसका बाद इट becomes concentrated to your इष्ट देवता and later on again you merge into इष्ट देवता. Now these things are not there in our sadhana पद्धति. No, don't do it. ये मत करो, जो आपको साधना पद्धति है उसके अनुसार करना, बस मेरे कहने से मत करना। सर नहीं महाराज जी, नहीं करूंगा, लेकिन अपना साधन पद्धति को स्टिक करते रहूंगा, लेकिन ये भी मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो साधना पद्धति कीजिए जैसा है उसमें, वो तो करूंगा ही, लेकिन इसको सेपरेटली टाइम निकाल के कर सकते हैं। हाँ सेपरेटली, पर एक बार करना है तो फिर रेगुलरली करना है उसको। हाँ करूंगा, लेकिन अपना साधन पद्धति पहले कर लूंगा, उसका बाद आपने जो अभी ऐड किया है उसको भी कर सकता हूँ कि इसमें हाँ ठीक है, कर सकते हैं, या हमारा माइंड आएगा उसका, जो ऐसा कुछ है क्या? बाद में प्रॉब्लम होगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको क्या ठीक लगता है, ये आपको अच्छा लगा, ये मेरा सजेशन है भाई। ना ये यतीश्वरानंद जी महाराज जी का जी है कि अपने मार्च करने का जो है, ये मार्च करने का चीज हमारे में नहीं है, तो इसीलिए मैं पूछा। हाँ? ये जो आपने बताया ना सच्चिदानंद, पहले इमेजिन करो, उसके बाद कंसेंट्रेट करो, अपना इष्ट में आ गया सच्चिदानंद, उसके बाद अगेन यू इट स्प्रेड्स, माने यू मर्ज विद सच्चिदानंद, यू बिकम द वन विद द सच्चिदानंद. नाउ दिस concept is not there in our sadhana paddhati. Can I adopt it separately and separately do it? Will there be any conflict in the later life in the sadhana, मैंने down the line आगे जाके कोई conflict होगा क्या हमें spiritual? I will consult again Yatishwaranand ji's book and let you know. Okay? Okay महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी और एक प्रश्न है मेरा, ये मुझे अजीब सा लगा है, ये रामलला को पानी में गंगा में वो फेंक दिया है, और उसका बाद इसको भी गंगा जी में विसर्जन दे दिया, भैरवी भी। तो ये जो है, ये तो हमें ये कोई भी आइडोल या कोई भी प्रतीक या कोई सिंबल को तो हम लोग पूजा करते करते ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? श्री रामकृष्ण को हम गंगा जी में डाल सकते हैं क्या? अरे इन लोगों ने तो डाल दिया। क्यों? प्रश्न ये है कि आखिर है तो वो पत्थर की मूर्ति ना, पत्थर ये तो है। तो भी इतना दिन से हम लोग उसको पूजा किया है, सब कुछ किया, उसका मैं कैसे हम कर सकते हैं महाराज जी? ये थोड़ा अजीब सा एबनॉर्मल लग रहा है।
अब देखो भाई, ऐसा है कि किताब यहाँ लिखा हुआ है, किताब में इन लोगों ने किया, अपने शालिग्राम को भेज दिया। मैं क्या बताऊं उसमें? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है। अब हम तो करते नहीं है। हाँ, हम तो कोई मूर्ति वूर्ति कभी करते नहीं, हमारे को तो कभी किया ही नहीं। हमारे गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, न तो शालिग्राम है न शिवलिंग है, कुछ भी नहीं करते हैं। महाराज हम क्या बताएंगे तुमको? हम लोग तो बहुत सारा पूजा करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं दुर्गा जी का, सरस्वती जी का, और फिर सबको विसर्जन दे देते विसर्जन हैं। करते हैं। नहीं, फिर उसका पद्धति अलग है। इसका विसर्जन पद्धति होता है, दर्पण विसर्जन होता है, उसका बाद से जो सेल्फ को विड्रॉ कर लिया जाता है, तब जाके विसर्जन। हाँ, तो लेकिन वहां तो उन्होंने सेल्फ को मैनिफेस्ट कर लिया। वो कैसे ऑर्डिनरी नहीं, भैरवी ब्राह्मणी जैसे महान में वो तो मैनिफेस्ट हो गया। जिसकी पूजा कर रहे थे वो अब वो सामने बाहर है। अभिव्यक्त हो गया, तो बाहर की चीज की क्या जरूरत है? हमारे आपके लिए मुश्किल है भाई। ये तो पहले जिस पहले भक्ति किया है, उसका बाद ज्ञान से हे भगवान, यही तो दुर्भाग्य है। जिसने रियलाइज आपके कर लिए लिया, पत्थर की मूर्ति जो है वो अधिक इम्पोर्टेंट हो गई है। हम स्वामी इतने जी फिजिकली बाउंड है, वी आर सो फिजिकली बाउंड। उन्होंने हृदय में रियलाइज कर लिया ना। हाँ, जिसने उसको रियलाइज कर पत्थर लिया को भेज उसने दिया। उसको अपने हृदय में बिठा लिया, इसलिए विसर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न करूं महाराज जी। हमारा जो हमारा ठाकुर माँ स्वामी जी का जो फोटो है, ओवर द इयर्स करते 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 फेड हो जाता है, तो हम नया फोटो लेके आते हैं, तो पुराना फोटो कोई विसर्जन कर सकते हैं क्या? कर दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं। वो पुराना तो किसी को दे भी नहीं सकते हैं और वो रख भी नहीं सकते। अब सोच रहे हैं कि इसको क्या करूं। विसर्जन कर दीजिए, जला दीजिए। नदी में, जलाशय में विसर्जन होता है। गंगा में, गंगा में, पानी में विसर्जन कर। तो फेड हो गया और उसको रिप्लेस करके लाया। आप गंगा जी में, जमुना जी में कहीं विसर्जन दे दीजिए। महाराज जी बताइए थोड़ा, इसमें कोई दोष नहीं है ना? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। अरे पड़ा रहेगा, उसको पड़े रहने दो ना। हाँ, रहने दो, क्या नुकसान होता है जरा सा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ। वो तो रखा हुआ है। अरे ऊपर उसके डालने के ऊपर इतना डिस्कशन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, और फिर डाल दोगे तो उसके बाद सोचोगे अरे क्या कर दिया। पड़े रहने दो ना बाबा। हाँ ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रीता की जो क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं स्वामी जी, because I was